Assalamu alaikum all. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the review of this Mercedes S-Class S500 with some AMG bets. Although I have reviewed a Mercedes S-Class S580e before, but this is Mercedes S-Class S500 and that had a lot of AMG stuff. इसमें भी कुछ AMG packages हैं. We're gonna go around them and this is an official Shahnawaz import पाकिस्तान में. आपके पास ये S500 Formatic वाली है, which means it's an all-wheel drive car. And पाकिस्तान में ज़्यादातर आपकी जो import हुई थी that were S500s. जो S580s हैं and the S580Es हैं, those were private import cars. So this is an official Shahnawaz import car, S580 Formatic in black, the iconic color of the S-Class. And today I am going to be taking you for a tour around this. मैंने S580e जो है वो बहुत डिटेल से कवर की हुई है, but क्योंकि S500 है, this is a Shahnawaz import, and thirdly this is एक साल newer model था, so I was like, let me take you for a tour inside and outside the car because इसमें there are some differences which would be interesting to know. So let's start off with a review of this Mercedes. This is Mercedes S-Class's 7th generation, also known as W223 to W222 थी. That was also very beautiful. वो गाड़ी का एक अपना स्टैंड था. ये गाड़ी जब आई थी, as I told you guys, मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, but over the time they started to grow over me, and when I reviewed the S580, it was then कि I fell in love with this and I realized कि ये गाड़ी 222 से कितना बड़ा step up है. Well, now let's start off with the review, and for a brief introduction, this is a full size sedan, hence ये एक आपकी F category में आती है. और ये जो S classes हैं, पुरानी जो 222 थी वो लॉन्ग व्हील में आती थी, ये स्टैंडर्ड ही आपकी लॉन्ग व्हील है. आप देख सकते हैं फ्रंट डोर एंड योर रियर डोर इज़ सो मैसिव. लाइक नॉर्मली आपको यहाँ आता है, और जो माई बैक्स का डोर है वो फिर ये है कि आपकी जो रियर सी पिलर कट आउट है वो फिर बिल्कुल स्ट्रेट होता है. मतलब जो आपका रियर डोर है ना, वो यहाँ से फिर स्ट्रेट अप नीचे आता है, और जो रियर टायर होता है वो यहाँ हो जाता है. तो दैट इज़ द माई बैक. दिस इज़ नो शॉर्ट व्हील बेस, नाउ वी ओनली हैव द लॉन्ग व्हील बेस. और अगर हम इंजन कन्फिगरेशंस की बात करें तो S580 पहले होता था, इट वाज अ V8. ऑलराइट, इसमें मर्सिडीज़ ने थोड़ा चेंज अप ये किया है कि यू हैव एन S450H जो कि S400 की रिप्लेसमेंट है, वो पाकिस्तान में नहीं आती. वी हैव S500 which is an inline 6. We have an S580 which is a V8, all right, and we have an S580E which is not a V8 but it has E motor. ठीक है, S580E में आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है. S500 और S580 में we have a mild hybrid system, a 48 volt battery attached. ठीक है, but in S580E we have a proper battery setup in that car. And power की बात करें तो हम we're gonna go in the detail, but this car produces 430 horsepower and 520 newton meters of torque. S580 जो है that produces 500 horsepower and 700 newton meters of torque. जो S580 है that produce जो S580E है, S580 के मैंने अभी आपको बताया ना, जो S580E है that produces 560 horsepower and 760 newton meters of torque. After this, in the Maybach we have the V12 and the V8, और जो आपके पास S63 है उसमें भी it's a V8. So let's start off with the exterior and then to the interior and then to the driving impressions of the car. Starting with the front, you have a flat hood and two strong character lines flowing all the way जो कि आपकी ग्रिल में इंटीग्रेट हो रही हैं. आफ्टर दैट आपकी एक बड़ी सॉफ्ट सी लाइन इंटीग्रेट हो रही है इन योर फेंडर, और एक ये आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन जा रही है ऑल द वे. अगर आप इसे देख सकें ऑल द वे ये बैक जाके आपकी रियर लाइट में इंटीग्रेट होती है ये वाली लाइन. ठीक है, ये देखें आप, दिस लाइन कम्स ऑल द वे, एंड आफ्टर दैट आपके आर्चेस पे एक थोड़ा सॉफ्ट है, फिर स्ट्रॉन्ग लाइन ओवर द आर्चेस जा रहा है. आफ्टर दैट ये जो एस क्लास का फ्रंट फेस है ना, दिस टुक सम टाइम टू लव एंड फॉर मी टू लाइक, क्योंकि जो W222 है ना, that was very very strong in its design language game. All right, below that we have our huge air intake. We have 3 slats in chrome. Outer आपके पास जितना भी surround है that is also in chrome, and we have all this in piano black, hence the quality is really good. अच्छा, इस गाड़ी में ये है कि you have all the adaptive
थिंग्स, आपकी सारी ऑटोनमस ड्राइविंग है, तो दोज रेडार्स आर हिडन बिसाइड दिस। तो आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ ग्रिल, ये आपका प्लास्टिक पीस है। प्लास्टिक पीस के अंदर ये क्रोम इनलेज हैं। एक्चुअल जो क्रोम है वो ये वाला है, अगर आप देख सकें ना। आफ्टर दैट दिस इज़ द प्लास्टिक पार्ट एंड दिस इज़ योर फ्रंट कैमरा। इस गाड़ी में ऑफ कोर्स वी हैव 360 कैमराज। मैं ये विश कर रहा था कि W222 की तरह, द लास्ट टेन की तरह, इसका कैमरा ना पॉप आउट वाला होता है कि वो हिडन रहता, इस तरह वो अच्छा नहीं लगता। एंड आफ्टर दैट आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस गाड़ी के जो बम्पर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। जो मैंने S580E की थी उसमें भी AMG पैकेज ऑप्ट हुआ था, और इस गाड़ी में भी AMG पैकेज ऑप्ट हुआ है। लेकिन AMG पैकेज में आपके पास कन्फिगरेशन होती हैं। इस गाड़ी में एक्सटीरियर AMG पैकेज ऑप्ट हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यू हैव द AMG बम्पर्स, AMG alloys, AMG rear bumpers and AMG side skirts। ऑलराइट, सो अगर आप नॉर्मल वाली S क्लास लेते हैं तो उसमें आपके नॉर्मल बम्पर्स आते हैं जो इतने एग्रेसिव नहीं होते, और पर्सनली मैं डेफिनेटली इन्हें प्रेफर करूँगा क्योंकि इनका एक स्टैंस ही अलग है। ऑलराइट, मूविंग डाउन एट द फ्रंट बम्पर, आपके पास बहुत ही एक स्मूथ बम्पर है। ओनली वन स्ट्रॉन्ग लाइन जो कि जा रही है, और आपकी वो जो लाइट्स वाली लाइन है वो कट होके ग्रिल में यहाँ इंटीग्रेट हो रही है, और ऊपर आपकी जो हुड लाइन आ रही है। beneath that you have typical AMG style बम्पर कटआउट्स जो कि ये कर्वेचर में जा रहा है, और क्रोम आउटलाइनिंग इसमें जा रही है ऑल द वे एट द बॉटम। एंड हेयर यू ऑल्सो हैव योर क्रोम टू स्ट्रिप्स। दिस इज़ अ फेक वेंट, इसमें कुछ नहीं है, हेक्सागोनल पैटर्न्स बने हुए हैं। इफ़ दिस वाज अ S63 तो यू हैव एक्चुअल एयर वेंट, अलबत्ता जो साइड एयर कर्टन है दैट इज़ एक्चुअल। सो दिस इज़ क्रोम, दिस इज़ क्रोम, ये सारा पियानो ब्लैक। आप देखिए यहाँ कोई चीप प्लास्टिक नहीं है। एंड इवन बीनीथ द कार आपकी जो रोड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम है, बट यह है ये एयर्स पे है तो यू कैन लिफ्ट इट अ बिट अप, ये एयर सस्पेंशन पे होती है। एंड द एडवांटेज इज़ दैट कि ये क्योंकि पाकिस्तान स्पेसिफिक गाड़ी है तो आपके पास नॉर्मल एस क्लासेस थोड़ी सी बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस होती है। आपका सारा पियानो देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्रोम, it's all elegant. This car has 6 parking sensors at the front, 1, 2, 3, and symmetrically 3 on the other side. Your front tow hook anchor is right around here. Front number plate plinth ये आ जाता है, जो कि मैं कहूँगा एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक है, इससे भी पियानो में होना चाहिए ज़रा अच्छा लगे। और आप ये देखें कि ये जो कर्टन्स हैं ये थोड़े इंडेंट होते हैं और फिर ये एरो की तरह आते हैं, और दिस इज़ सेंटर पॉइंट ऑफ द मर्सिडीज़। अलबत्ता यहाँ कोई लाइन नहीं है, लेकिन अगर एक होती ना थोड़ी सी इंडेंटेशन तो वो एक लुक में और इन्हांस करती है। और हम सबसे ज़रूरी अगर बात करें तो वी हैव द मर्सिडीज़ एम्बलम विच इज़ फ्लेक्सिबल, के इन केस इस पर थोड़ी सी हार्शनेस होती है टूटे ना। वी हैव द ब्लैक AMG लोगो एंड आर ब्यूटिफुल बीम्स। दिस इज़ योर DRL। ये जो 3 हैं ये आपकी पार्किंग चलती हैं, 1, 2, 3 टू सिग्निफाई दिस इज़ एन S क्लास। E क्लास हो तो 2 होते हैं, C क्लास हो तो 1 होता है। These all are your LEDs जो कि हाई बीम्स लो बीम्स एडजस्ट करती रहती हैं। दे आर अडाप्टिव लाइट्स विद मल्टी बीम्स। एंड आप इवन अंदर देखें आपकी कितनी अच्छी पियानो ब्लैक की डिज़ाइनिंग है। इट ऑल लुक्स वेरी वेरी वेल फिनिश्ड। इवन ये देखें कॉर्नर्स, द क्रिस्टल्स, मर्सिडीज बेंज बड़ा प्रोनाउंसली स्टेटेड है। आई रियली लाइक दिस। इवन आप ये देखें ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ये जो AMG बम्पर्स हैं इनकी जो साइड लाइंस ऊपर आ रही हैं लाइक टिपिकल AMGs, और नीचे से भी एक लाइन ऊपर जा रही है, फिर ये थोड़ी इंडेंट कर रही है फॉर अ मोर एग्रेसिव एंड डायनामिक लुक। अगर आप नॉर्मल मर्सिडीज़ का बम्पर को ऑप्ट करते हैं ना विच इज़ अ स्टैंडर्ड, तो वो इतना प्यारा नहीं लगता। मूविंग एट द साइड, दिस इज़ वेयर यू रियलाइज के हाउ लॉन्ग एंड हाउ बिग द कार इज़। ऑलराइट, आप खुद देख लें साइज़, और ये आती ही अब लॉन्ग व्हील बेस में है। शॉर्ट व्हील बेस ये गाड़ी आनी ही बंद हो गई, और जो कि अच्छी बात है। लाइक यू हैव टू गेट द लॉन्ग व्हील। इस गाड़ी में आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन है, वो जो फ्रंट लाइट से शुरू हो रही है जो मैंने आपको बताया, और ऑल द वे रन्स टू द रियर लाइट। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट लाइन एक फ्रॉम द सेंटर हो रही है कि गाड़ी को डिवाइड कर रही है, एंड साइड सेल के ऊपर आपका क्रोम लगा हुआ है। तो इस गाड़ी में ना क्रोम टच बहुत ही सटल हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आपके पास विंडोज अराउंड के अराउंड भी ऑल मैट क्रोम है, ज़रा पॉश क्रोम लगता है। योर डोर के A और B पिलर सराउंड्स और ऑल इन पियानो ब्लैक। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, सब पियानो ब्लैक हैं। इवन आपके मिरर आर्म्स जो हैं दीज आर पियानो ब्लैक। दीज आर योर साइड मिरर्स विद 360 कैमरा एंड योर वेलकमिंग लाइट्स, पडल लाइट्स इसके अंदर हैं। मिरर का साइज़ मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़रा बड़ा हो सकता था,
विंडशील्ड वाइपर्स, और इन वाइपर्स के अंदर आपके वॉशर जेट्स हैं, देर नॉट देयर, ठीक है। एंड यू हैव अ ह्यूज पैनोरामिक रूफ, नो एंटेना ओवर देयर। इस गाड़ी में वी हैव द पॉप आउट डोर हैंडल्स, मर्सिडीज एम्बलम लिखा हुआ है, एंड दैट इज इन केस आपकी बैटरी फ्लैट हो जाए, दैट्स हाउ यू ओपन इट। क्रोम अपर पार्ट है, बॉडी कलर लोअर पार्ट है, आप देखें कितनी प्यारी एक लाइन जा रही है। ये गाड़ी अनलॉक हो गई है, और अगर मैं इसे लॉक करूं तो ये वापस रिट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इफ़ आई टैप द बटन, और अगर मैं इसे इस तरह करूं तो इसके जो डोर हैंडल है वो बाहर पॉप आउट हो जाते हैं विद ऑफ कोर्स रिट्रैक्टेबल मिरर्स। यू हैव कॉन्वेक्स मिरर ऑन द एंड, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एवरीथिंग इज देयर, एंड विद द टैप ये इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसे इस तरह करें तो ये वापस बाहर आ जाते हैं। काफ़ी अच्छे हैं, स्टर्डी हैं, आप ये देखें, काफ़ी एक सॉलिड फील है, सॉफ्ट टच ऑफ कोर्स गाड़ी में बिल्कुल है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये वाली एक लाइन जा रही है आपकी ऑल द वे टू द बैक, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और आपकी एक ये जो लाइन जा रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी बहुत प्यारी लगती है। एंड ऑन द लोअर सिल्स वी हैव आर साइड स्कर्ट, और साइड स्कर्ट भी AMG वाली है, तो एक्सटेंडेड है विद योर क्रोम आउटलाइनिंग। एंड अ नीट फीचर इज़ दैट यहाँ कोई डिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन ऑर्डर फॉर द डोर डिवीजन ये लाइन यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है। दैट इज़ रियली गुड अटेंशन टू डिटेल, आई लव इट। योर सी पिलर और आपकी क्वार्टर विंडो आ जाती है। दिस इज़ द मर्सिडीज़ की, एंड जो मैंने पहले की थी इट हैड ब्लैक विद क्रोम, दिस इज़ वाइट विद योर क्रोम, और ये सारा प्लास्टिक पार्टी है। ये मर्सिडीज एम्बलम को प्रेस करें तो गाड़ी लॉक्स, ठीक है। यू प्रेस अनलॉक बटन तो ये अनलॉक हो जाती है, एंड विद दिस बटन आपकी जो बूट है वो अनलॉक हो जाता है। ऑलराइट, मूविंग एट योर alloys, जैसे मैं आपको बता रहा था कि दिस हैज़ एन एक्सटीरियर AMG पैकेज, जिसमें आपके पास AMG alloys आ जाते हैं, और आप देख भी सकते हैं AMG एम्बलम वहाँ है भी। दीज आर 14 स्पोक AMG alloys, और इनका आउटर पार्ट इज़ योर क्रोम, योर ब्रश क्रोम, इनर आपका सारा पियानो ब्लैक जा रहा है। यू हैव ह्यूज AMG कैलिपर्स एंड ह्यूज डिस्क ब्रेक्स ऑल्सो टू स्टॉप द कार। मिचलिन की इसमें टायर है, एंड द टायर साइज, और इसमें जो मिचलिन का है दैट इज़ पायलट सुपर स्पोर्ट, एंड टायर साइज की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 255/40 R20s, and they're actually huge. Insulations of course S class है, तो पैडिंग सारी हुई हुई अंदर भी, वरना गाड़ियों में रियर पे होती है, इसमें फ्रंट पे भी सारी है। और आप देखें फ्रंट पे भी आपकी ओवर द आर्चेस भी एक बड़ी सॉफ्ट सी लाइन जा रही है फॉर, मतलब एक सटल है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ये वाली है। मतलब ये तो लाइन इस तरह जाती है, फिर ये कर्व होके वापस आती है, लाइक इट हैज़ अ कर्वेचर, अ किंक टू दिस। बट दिस ये एक सॉफ्ट सी लाइन फ्लो कर रही है, जो कि यहाँ जाके ना डिसअपीयर करती है, कि ज़रा आपकी जो आर्च है वो थोड़ी ज़रा बीफी लगे। AMG में ज़रा ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं। एंड लाइक वाइज एट द रियर टू, इस गाड़ी में यू ऑल्सो हैव रियर स्टेयरिंग, जिसकी वजह से आपका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। रियर स्टेयरिंग का फ़ायदा ये होता है कि ऑन हाई स्पीड्स ये सेम डायरेक्शन में टर्न करते हैं, ऑन लो स्पीड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हैं। एंड कैन यू इमेजिन, आई टुक अ यू टर्न देयर, और ये गाड़ी ने 1 यू टर्न में कर दिया था विदाउट टेकिंग अ 3 पॉइंट टर्न। दैट्स हाउ impressive and that's how magical a rear wheel steering is. All right, after that, moving at the back, मैंने जैसे कहा कि वो line all the way flow back कर रही है, and this is the rear of the Mercedes S-Class S500 4MATIC. All right, that's the rear. और अगर आपने एक Mercedes को पहचानना है कि ये कन्वर्टेड है या एक्चुअल है, तो आप उसकी रियर स्क्रीन को देखिएगा। ये जितनी भी Mercedes W222 और W223 ये वाली जो है, इनकी विंडस्क्रीन हमेशा ये कर्वेचर में होती हैं। अगर स्ट्रेट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल, और ये कन्वर्टेड है। हाई माउंट ब्रेक लैम्प आपका ये लगा हुआ है, डिफ्रॉस्टर्स हैं, और आप ये देख सकते हैं कि टिंटेड बैक विंडो है। आफ्टर दैट वी हैव अ वेरी सॉफ्ट लाइन फ्लोइंग ऑल द वे, और ये भी बड़ी मतलब सॉफ्ट है, और इसमें ना लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी एलिगेंट। और जो मैं आपको एक मिड पॉइंट कह रहा था, इस गाड़ी में यू हैव स्मार्ट एंट्री ऑन ऑल द 4 डोर्स। तो जैसे ही मैं इसके पास आता हूँ, दिस हैज़ स्मार्ट रिकग्निशन, तो ऑटोमेटिकली अपनी डोर हैंडल्स बाहर निकाल लेता है कि मैं उसे खोलूँगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये वाली जो मैं लाइन कह रहा हूँ, जो लोअर पार्ट से आ रही है, ये पीछे बम्पर में आ रही है, और बम्पर में जाके ये एक सॉर्ट ऑफ डिवीजन बम्पर में भी कर रही है। ऑलराइट, एंड लाइक टिपिकल मर्सिडीज़, आपका जो हुड का लोअर है वो भी एक ट्रायंगुलर शेप में आता है, जैसे फ्रंट एक ट्रायंगल है ना, रियर भी ट्रायंगल है। यू हैव अ क्रोम स्ट्रिप गोइंग ऑल द वे, योर मर्सिडीज़ एम्बलम
4MATIC S500 and these are your beautiful LEDs जो कि बार लाइक LEDs हैं. Wait a second, I'm going to move to the other side. यहाँ थोड़ा सा आपको बेहतर नज़र आ जाएगा. Just look at the beauty. ऊपर वाली अब आप ये देखें, इसमें लाइक स्क्वायर टाइप और अपर पार्ट इनका ट्रायंगल है, सॉर्ट ऑफ अ ट्रेपीजियम. सीरीज एम्बलम ये है, योर रिफ्लेक्टर हेयर. अपर पार्ट जो है ये आपका ब्रेक लैम्प प्लस योर टेल इंडिकेटर्स होता है. नीचे वाला इज़ योर रियर लाइट. ऑलराइट, एंड दैट्स योर रिवर्स लाइट. ऑल illuminations आर LEDs गाड़ी में. ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि हैलोजन होना चाहिए. Along with this, your rear reflectors are also here beneath your lights. और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न चल रहा है ना, ये बड़ा प्यारा लगता है, जिस तरह ये ट्रायंगुलर फ्लो कर रहा है. लाइकवाइज यहाँ भी, और इवन जैसे मैंने कहा था विंडशील्ड में देर इज एक्स्ट्रा डबल ग्लेजिंग हुई हुई है, हाई माउंट ब्रेक लैम्प है, और इवन ये वाला सेक्शन भी आपका पियानो ब्लैक है, जबकि ये कुछ करता नहीं है. डिस्पाइट द कलर ये आपका यही रहेगा. एंड एट द बैक जैसे मैंने कहा, लाइक इन द फ्रंट टू यू हैव अ वेरी ट्रायंगुलर डिज़ाइन ऑफ द हेडलाइट्स टू. तो वो बड़ा स्वीपी और नीट एक टच सारा मिलता है. तो इस मामले में इट्स रियली परफेक्ट. एट द मोमेंट दिस कार इज़ इन इट्स नॉर्मल हाइट. आप इसे थोड़ा सा लोअर भी कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो रेज अप फॉर क्लियरिंग ऑब्स्टिकल्स, और ये ना आराम से रेज अप भी हो जाती है. दैट्स योर नंबर प्लेट प्लिंथ, जो कि अगेन एक उसकी इंडेंटेशन है, एक सॉर्ट ऑफ अ मिनी ट्रायंगल आ रहा है. एंड दैट्स योर नंबर प्लेट प्लिंथ. योर बूट रिलीज नंबर प्लेट illuminations आर LED. दैट्स इन केस आपका बूट फेल हो जाए तो आपको मैनुअली खोलना पड़े. एंड इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसका जो कैमरा है दैट इज़ एक्चुअली स्टोर्ड अवे. तो व्हेनेवर जब आपने गाड़ी रिवर्स करनी है तो तब वो डिप्लॉय होगा कि अननेसेसरी कैमरा गंदा ना हो. ऑलराइट, आफ्टर दैट मूविंग एट द रियर, the lower bumper, you have 6 parking sensors at the back, your rear reflectors and your rear tow hook anchor point. Chrome strip आपके पीछे भी जा रही है. अब क्योंकि AMG मॉडल है तो इसमें you have the exhaust tips, और exhaust tips are thankfully real although they are exaggerated. मतलब आप देख सकते हैं असल एग्जॉस्ट तो वही है, मतलब 2 पाइप्स here 2 पाइप्स there, और इनमें फ्लैप्स भी हैं, मतलब दे हैव वाल्व कंट्रोल टू, जिसकी वजह से अपनी साउंड एडजस्ट कर सकते हैं. वन हेयर, और इनमें ये भी एक सैटन है, एग्जैक्ट यही वाला क्रोम है. फेक डिफ्यूज़र लाइनिंग आ जाती है नीचे से भी, काफ़ी अच्छा एक डैम्पनिंग है. योर एग्जॉस्ट टिप्स और कॉर्ड एग्जॉस्ट हैं आपके, लाइक कॉर्ड मतलब सिंगल एग्जॉस्ट ही है, बस वो टिप्स यहाँ भी दो हैं वहाँ भी दो हैं, तो उसको मैं कॉर्ड कह रहा हूँ. फ्यूल फिलर कैप जो कि इट्स ऑटोमेटेड. आप फ्रॉम द इंटीरियर यू जस्ट प्रेस अ बटन, या ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है. हाउएवर जो मैंने S580 रिव्यू की थी उसमें यहाँ एक प्लग इन का चार्जिंग पोर्ट भी था, जो कि इट वाज अ नीट टच. और 222 में आपको याद होगा कि वो पोर्ट होता था यहाँ, एंड दैट लुक्ड रियली ऑफुल. ओपनिंग द रियर ट्रंक ऑफ दिस कार विद द प्रेस ऑफ दिस बटन इट ओपन्स अप. ऑटोमेटिक है, जाहिर बात है. दिस इज द बूट ऑफ दिस Mercedes S500 एंड वी हैव अ एम्पल स्पेस हियर. इस गाड़ी की पैकेजिंग बहुत अच्छी है. कारपेटिंग आप देखें, सो नीट, अ लॉट ऑफ स्पेस. दिस इज एक्चुअली लाइक 600 लीटर्स के करीब टच कर रहा है. LED illuminations on both corners. You have your hooks जो क्या आप पुल करें, you can hang stuff. यहाँ भी you have some space. your netting आ जाती है, जो कि इस तरह ऊपर करें तो netting है आपके पास, plus some strapping, 12 volt power outlet, and this is for your electronics. fuse वगैरह होते हैं. those are your anchor points. ठीक है, यहाँ आप कुछ एंकर कर सकते हैं. ऑल्सो हेयर आई विश कि ये होते आपके क्रोम में. बीनीथ दिस इज़ नथिंग. अगर आपकी S580 होती तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता. एंड दैट्स कारपेटिंग. नीचे आपका टो हुक का वो एंकर आ जाता है. एंड या a bit of a storage. You have a boot cell in chrome, again पॉशनेस को एम्फेसाइज करते हुए. ऑल्दो इतना कोई लोड लिप नहीं है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन ये है कि जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको अपना बम्पर का ये पार्ट बचाना पड़ता है, ये ना निकालते ये भी आपका सारा स्क्रैच हो जाए. आफ्टर दैट ऑन द अपर पार्ट अगेन इट्स ऑल लाइंड, और बहुत ही अच्छा एक कारपेटी है. दिस इज स्क्रैची. ये आपकी रियर अलर्ट है कि योर बूट इज़ ओपन फॉर द रियर ट्रैफिक. दैट्स योर इल्यूमिनेशन फॉर योर बूट. LED है. दैट्स योर रियर वार्निंग. एक तो लाइट्स आ जाती हैं, और ये आपकी rear warning for the rear traffic है कि your boot is open, and upon opening this is your hazard warning triangle, जो कि आप खोलने तो आपके triangle बन जाता है. Let me close this up. ये जितनी भी आपकी arms हैं they are all covered in plastic. This is all
in plastic, like high-end plastic, no cheap outs. And by the way, इस गाड़ी में आप रेफ्रिजरेटर भी ऑप्ट कर सकते हैं, और जब वो रेफ्रिजरेटर ऑप्ट करते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर यहाँ आ जाता है, और जब वो रेफ्रिजरेटर आप ऑप्ट करेंगे तो फिर यू वुड हार्डली हैव, मतलब वो यहाँ तक आता है, देन यू वुड हार्डली हैव अबाउट 300 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी, उससे ज़्यादा नहीं है। ऊपर की भी देखें इंसुलेशन कितनी अच्छी है कि मतलब ये सब कवर्ड है, और नॉर्मल गाड़ियों में आपके पास ये भी चीप आउट होता है। तो Mercedes quality is really good, and there's no like split of the seats, anything like that. We have a button to lock the car from here, and that's how you close the boot. Here we illuminated enough for the rear traffic to know, so let's close it up. Of course, we have soft close in the boot too. Now going to the hood of this car, that's how we're gonna open the car. ठीक है, इस गाड़ी में जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट क्लोज है, लाइक द BMW। इस गाड़ी का एक तो हुड जो रिलीज है दैट इज ये रेड है, एंड यू पुल इट ट्वाइस तो वो ऑटोमेटिकली अनलैच हो जाता है लाइक BMW। और एक बड़ी स्मार्ट चीज़ है, आपको वो क्या वो बार बार बंदे ने लीवर ढूंढना है, आराम से बंदा ये करे एंड यू लिफ्ट दिस अप, oh that's heavy, and this is the front hood of this Mercedes S500, beautiful। सबसे पहले आप देखें डैम्पनिंग, ठीक है, हीट शील्डिंग, डैम्पनिंग वेरी गुड, वेरी सॉलिड एवरीथिंग। आफ्टर दैट पैकेजिंग देखें कितनी अच्छी है। इस गाड़ी में यू हैव Mercedes का स्ट्रेट 6, जिसकी वजह से ये देखें 1 2 3 4 5 6 लाइन्स टू एम्फसाइज के स्ट्रेट 6। आफ्टर दैट अगेन आपकी हीट शील्डिंग आ जाती है। अच्छा, हम इस इंजन की बात करें तो दिस इज़ अ 6 सिलेंडर inline, a turbocharged definitely, and this produces 430 horsepower and 520 newton meters of torque, mated to your 9-speed automatic gearbox, and it has a 48 volt electric motor too। और S580 जो विदाउट एन ई मोटर है उसमें भी यही सेटअप होता है, उस दैट हैज़ अ V8, और उसके जो हॉर्स पावर होते हैं दैट इज़ हायर, उसके इट हैज़ 500 हॉर्स पावर एंड 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वाइपर की डिटेल में कह रहा था, आप देखें ये जो आपका अपर वाइपर है इसकी आर्म्स भी आपके पास दो हैं, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। योर वॉशर फ्लूइड रिजर्व इज़ देयर फॉर योर विंडशील्ड, दैट्स योर कूलेंट। आपके चेसिस की स्टार्टिंग हुई है फॉर एक्स्ट्रा एनहांसमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, और जैसे मैं कह रही हूँ गाड़ी बहुत ही कम चलती है, तो आपको पता चल रहा होगा कितनी नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग लाइक super clean, you can check this out also। और इसमें जो क्रैश सेफ्टी है that is also top notch, and your beautiful Mercedes emblem। हम इसे प्यार से बंद करते हैं, और ये वाह that was cool, आराम से बंद। और इसकी मैं आपको क्वालिटी ज़रा सुनाना चाहता हूँ, that's called solid quality, मतलब ज़बरदस्त। These are the headlamps of this Mercedes। ये देखें इस टाइम ये DRL चल रही हैं, और ये 3 आपकी पार्किंग चल रही हैं, and likewise at the back too these are your lights, ठीक है। ये जो अपर पोर्शन है जो आपकी रियर लाइट्स चल रही हैं, ब्रेक लाइट्स भी साथ ही, और ये आपके जो इंडिविजुअल ट्रायंगुलर शेप्ड बिल्डिंग टाइप्स बनी हुई हैं, और कितनी नीट लगती हैं। ऑल द बीम्स आर ऑन, दैट्स योर पार्किंग लाइट टू, एंड अपॉन योर टर्न इंडिकेटर्स, ये आपके जो DRL है टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ योर साइड LED टर्न इंडिकेटर, ऑल LEDs ऑफ कोर्स। एंड एट द बैक जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी जो रियर लाइट है वो बॉटम वाली है, और जो अपर पार्ट है आप ये देखें कि ये आपकी सारी टर्न इंडिकेटर होता है, लेकिन आप ये देखें अपॉन जब टर्न ऑफ होते हैं तो आपकी बैक लाइट आती है, फिर आपके टर्न इंडिकेटर आते हैं। तो दिस इज अ रियली गुड अटेंशन टू डिटेल। मूविंग एट द इंटीरियर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपका पॉप आउट डोर हैंडल्स, और मतलब ये होल्ड देम तो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेती है, अनलॉक देम और ओपनिंग देम अप। सबसे पहले आपको जो फील मिलती है ना व्हेनेवर यू ओपन द डोर हैंडल, एक तो सॉफ्ट क्लोज है, जब आप ये दरवाज़ा खोलते हैं ना, एक आपको मतलब एक माइंड में होता है कि दिस माइट नॉट फील सॉलिड, बट ये देखें हाउ सॉलिड इट इज़। ये आई नो देयर ऑटोमेटिक, बट इनमें एक मैकेनिकल आपके फील है। अच्छा, उसका दरवाजे की बात करें तो वेरी सॉलिड थाट, ये देखें लाइक प्रॉपर मर्सिडीज, नो लाइक क्रैंक। एक प्रॉपर जो आपने मर्सिडीज कभी एक्सपीरियंस की हो ना, तो एक वो फील है। वेरी वेरी वाइड डोर, और दिस ओपन्स टू योर 3 hinge points, वेरी वाइड ओपनिंग डोर। एंड इस गाड़ी का जो इंटीरियर है दैट इज़ ब्राउन विद योर ब्लैक अपर पार्ट
एंड योर वुड, जो कि आपका सारा ये विनियर जितना भी लगा, दिस इज ऑल योर वुड इंसर्ट्स। ऑलराइट, दरवाजे के जैसे मैंने बताया इट्स वेरी स्टर्डी, जहाँ आप छोड़ेंगे अपनी जगह पे खड़ा होता है, 3 हिंज पॉइंट्स हैं एंड एक प्रॉपर इस गाड़ी की फील है। और ये क्रोम भी बहुत ही जो सैटन है ना, दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मूविंग डाउन बिलो, इस गाड़ी के एक तो आप दरवाजे की चौड़ाई देखें, जस्ट ब्यूटीफुल। एंड द डोर ऑल्सो रैप्स कि आपकी ट्राउजर्स गंदे ना हो व्हेन यू गेट इनसाइड, बट आपको क्योंकि AMG साइड सील्स हैं तो आपको ये ज़रा थोड़ी वॉच आउट करनी पड़ती है, स्पेशली कि आप इन पे स्टेप ना कर दें तो ये थोड़ी डैमेज भी हो सकती हैं। मूविंग ऑन द डोर कार्ड, इस गाड़ी की विंडोज़ बहुत अच्छी हैं। इवन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि S क्लास है तो क्वालिटी टॉप नॉच। आप ये देखें, दिस इज़ ऑल योर कार्पेटिंग टाइप मटीरियल जो कि स्वेट टाइप होता है फॉर बेटर इंस्टॉलेशंस, और ये आपको रोल्स रॉयस में मिलता है। और यहाँ ये सारा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, दिस लुक्स सो गुड। मतलब इसकी इवन द इंस्टॉलेशंस के लिए ऑल दिस रबर इज़ रियली रियली टॉप नॉच। शीशों का साइज़ बहुत अच्छा है। दैट्स योर ट्विटर। इस गाड़ी में आई डोंट थिंक सो वी हैव द अपग्रेडेड साउंड सिस्टम, नहीं वी डू हैव द अपग्रेडेड बर्मिस्टर साउंड सिस्टम, लेकिन अगर है तो यहाँ भी ज़रा बर्मिस्टर का यार क्रोम डाल देते। इस गाड़ी के डोर कार्ड में वी हैव 4 layers। ऑलराइट, टॉप लेयर इज़ योर सॉफ्ट टच पैडिंग जो कि बहुत अच्छी है, ग्रे स्टिच गोइंग ऑल द वे हेयर। इस गाड़ी में आपके पास 2nd gen ऑफ एम्बियन लाइट्स है, विच मीन ये जितनी भी एम्बियन लाइटिंग है ये तो एक तो स्मार्ट है, प्लस इसमें ये वाली एम्बियन लाइट को आप डबल उसमें कर सकते हैं, लाइक डबल फ्लो में कर सकते हैं, लाइक अपर फ्लो लो फ्लो। दिस इज एम्बियन लाइटिंग 2.0। ऑलराइट, आफ्टर दैट क्रोम स्ट्रिप गोइंग ऑल द वे, एंड ये आपका जितना भी पैटर्न है दिस इज ऑल सॉफ्ट टच, क्रिस क्रॉस पैटर्न्स यहाँ जा रहे हैं, लाइक योर डायमंड पैटर्निंग सारी हुई हुई है। या आपको आर्मरेस्ट देखें कितना सॉफ्ट है। लाइकवाइज दैट्स योर hovering control for your seats, that's your डोर पुल, लॉक एंड अनलॉक बटन ये हैं। अगेन इनकी बड़ी ज़बरदस्त फील है, इन क्रोम है। ये ज़रा स्क्रैची है, ये भी ज़रा बेहतर होता। दिस इज़ ऑल पियानो, इसका जो आउटर है वो सारा क्रोम लाइनिंग है। मूविंग एट द सीट कंट्रोल्स, वी हैव 3 मेमोरी सीट्स। इस गाड़ी में हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, एंड विद दिस प्रेस ऑफ अ बटन आप अपनी पैसेंजर सीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी के जो सीट कंट्रोल्स हैं वो एक्चुअली मूव नहीं करते, बट दे आर हैप्टिक। और व्हेन यू प्रेस दिस तो आपके पास एक कंप्लीट मेन्यू इन योर सेंटर स्क्रीन आ जाता है, और इस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि ये 14 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं, लेकिन दे आर नॉट 14, दे आर 18 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, क्योंकि उनके फर्दर मेन्यूज़ आपके अंदर आते हैं। आफ्टर दैट ये आपका सारा वुडन सेक्शन आ जाता है जो कि यहाँ तक है। उसके बाद अगेन अनदर अपर सेक्शन जो कि इन पियानो ब्लैक है विद योर क्रोम सराउंड्स, एंड in this you have your window controls, ठीक है, that's to retract your mirrors। जौन सा मिरर आपने एडजस्ट करना है ये प्रेस करके ये आपका ट्रैक पैड है। these are your window controls। एक तो द प्लास्टिक अगेन ठीक है, लेकिन आई विश कि ज़्यादा बेहतर होती है। देखिए एम्बियन लाइट भी आपकी अंदर ग्लो करी है। जो विंडो कंट्रोल बटन्स हैं वो इटसेल्फ आर वेरी वेरी पॉश, लाइक आप इनकी डैम्पनिंग देखें, सॉफ्टनेस देखें, बहुत पॉश हैं। और ये दे आर इन क्रोम, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और स्पेशली ये जो कट आउट है इट लुक्स ब्यूटीफुल। दैट्स योर विंडो लॉक, दैट्स हाउ यू ओपन योर शेड, जो रियर शेड है आपका। एंड यस, और ये जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। दीज आर योर लाइट कंट्रोल के, यहाँ से ऑटो पे है, यहाँ से अपनी बीम्स ऑन कर सकते हैं। दैट्स योर लो बीम्स, एंड थ्रू दिस ये आपकी पार्किंग्स ऑफ हो जाएंगी। यहाँ से आपकी पार्किंग बेसिकली ये है कि आपकी लेफ्ट DRL ऑन होगी, राइट DRL ऑन होंगी, एंड अगर आप बिल्कुल नीचे करते हैं तो ऑफ हो जाती हैं। एंड दैट इज़ फॉर योर फॉग लैम्प। प्लस इस गाड़ी में कि ये आप देखें कि द पैटर्न और इसमें द अटेंशन टू डिटेल इज़ सो गुड। सारा सिल्वर लाइनिंग है, ये नर्ली इफेक्ट है, और इनकी ये देखें डैम्पनिंग इज़ वेरी गुड, और इल्यूमिनेटेड भी हैं, बैक भी इनका सारा क्रोम है, एंड दिस इज़ ऑल वर्ड, लुक्स वेरी वेरी परफेक्ट। आफ्टर दैट मूविंग ऑन द लोअर कार्ड, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स यहाँ चीप आउट करते हैं। ये देखिए इसकी स्टिच पूरी जा रही है, बेसिकली ऊपर इसकी ब्राउन स्टिच है, नीचे ये ग्रे स्टिच जा रही है जो ये वाली है, तो एक बड़ा प्यारा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। लाइकवाइज योर इंटायर क्रोम स्ट्रिप जिसमें एम्बियन लाइट ऑन द लोअर पार्ट है। ये देखिए इवन दिस इज़ ऑल सॉफ्ट, बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम आ जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। मतलब ट्रेडिशनली इतना सॉफ्ट आपको कुछ गाड़ियों में, मतलब इवन अगर आप C क्लास में चले जाए तो ये वाला पोर्शन इतना सॉफ्ट नहीं होता है जितना इसका लोअर पार्ट सॉफ्ट है। योर रियर ट्रैफिक अलर्ट, योर पैडल लाइट्स, नीचे से देखें कितनी अच्छी इंस्टॉलेशन है, एंड इनसाइड द डोर पॉकेट ऑल लाइंड
प्रॉपर क्वालिटी, दैट्स हाउ यू ओपन योर बूट। और ये बटन देखें क्रोम का है, क्वालिटी है, क्रोम सराउंड, और मतलब ईच बटन में क्वालिटी। और आई वुड से ये एक पुरानी W222 से बहुत बड़ा जंप है। ऑल्दो आप ये देखें कि इसके अंदर भी सारी लाइनिंग है, तो दिस इज़ रियली गुड क्वालिटी। और ये मैंने तब रियलाइज़ किया था, मैंने रिव्यू द रोल्स रॉयस, देन आई केम टू नो कि एक क्वालिटी को अगर जज करना हो ना, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो नाउ आई नो हाउ टू जज कि कार कितनी लग्जरियस है। तो इसके ये भी सारा लाइक दिस इज़ ऑल वेलवेटी स्टफ। ओवर हियर वी हैव द मर्सिडीज साइड सेल्स, लिमिनेटेड हैं। एक ये लोअर साइड सेल है, ये अपर है। यू हैव द ब्यूटिफुल मर्सिडीज सीट्स जो कि हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, 18 वे हैं। एंड इनकी आप क्वालिटी चेक करें, द क्विल्टिंग, द डायमंड पैटर्न्स, साइड बोल्स्टरिंग चेक करें। इवन ये वाला पार्ट सॉफ्ट है आपका, और कुशनी कुशनी cushions on the headrest, your headrest in actual, तो they look really beautiful। अच्छा, इस गाड़ी में इसके अलावा कोई AMG ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट द फ्लोर मैट्स। इन दिस कार यू हैव AMG फ्लोर मैट्स जो कि मैग्नेटिक होते हैं, और आप यहाँ से इन्हें अटैच कर, इनके हुक्स लगे होते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव AMG pedals too, and the accelerator pedal is mounted to the floor, and that's your brake pedal and that's your dead pedal। जो मैंने S580E रिव्यू की थी, उसका जो स्टेयरिंग व्हील था वो भी AMG स्टेयरिंग व्हील था, इसका AMG स्टेयरिंग व्हील नहीं है। मूविंग एट द बैक नाउ, जैसे मैंने आपको कहा, वेरी हैवी डोर्स, एंड दैट्स योर सिक्योरिटी इंडिकेशन कि व्हेन योर कार इज लॉक्ड, ये ब्लिंक करता है टू टेल यू कि आपका इमोबिलाइजर इज ऑन। क्लोजिंग दिस अप, बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देखें, सो सैटिस्फाइंग। ये पियानो है, और इस गाड़ी में आपको कोई चीपनेस नज़र नहीं आती। मूविंग एट द रियर डोर, जैसे मैंने आपको कहा कि इस गाड़ी में देयर इज़ नो ऑफरिंग ऑफ अ शॉर्ट व्हील बेस, इट्स ओनली लॉन्ग व्हील। सो ओपनिंग दिस अप, सबसे पहले द डोर इज़ एब्सोल्युटली ह्यूज। आप खुद देख सकते हैं कि अगला दरवाज़ा तो है ही बड़ा, बट द रियर डोर इज़ ऑल्सो मैसिव। एंड अगर मैंने रेंज रोवर का जो रिव्यू किया था, उसका डोर भी बहुत बड़ा था, इसका भी उतना ही बड़ा दरवाज़ा है। एंड ओपनिंग दिस अप, तो अगेन अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैवी डोर, अगेन 3 इंच पॉइंट्स है, और इतना बड़ा दरवाज़ा जब खुलता है ना, तो आपको जब ये पीछे लेग रूम नज़र आता है, वाह, दिस इज़ फिनोमिनल, अमेजिंग। आई लुक एट द लेग रूम, और मेरे ख्याल से एस क्लास में होना ही चाहिए, नो शॉर्ट व्हील होनी नहीं चाहिए। मूविंग एट द रियर डोर, जैसे मैंने आपको बताया, 3 इंच पॉइंट्स हैं, बहुत ही भारी दरवाज़ा है, एक प्रॉपर फील आती है, मतलब ये देखें, प्रॉपर मैं बंद करता हूँ, एक फील है मतलब दरवाजे की, एक मर्सिडीज़ का टिपिकल आवाज़ बंद होने की। योर ऑल द डैम्पनिंग फॉर बेटर इंस्टॉलेशंस। दरवाजे की आप विड्थ देखें, दैट्स ए चाइल्ड लॉक स्विच बाय द वे, in case you're wondering। And yes, after that, moving at the rear door, इस गाड़ी में रियर कर्टन्स भी हैं, ये भी कर्टन बंद हुआ हुआ है, कॉर्नर कर्टन भी बंद हुआ हुआ है। अगर मैं इसे ऊपर करूँ तो बाय द वे भी व्हेन आई स्टार्ट अप द कार, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। आफ्टर दैट अगेन यू हैव सॉफ्ट पैडिंग हेयर, ग्रे स्टिच ये जा रही है, एम्बियंट लाइटिंग 2.0 की ये स्ट्रिप है, दैट्स योर क्रोम स्ट्रिप। इस गाड़ी का जितना भी आपका रियर upper part है, this is all in diamond stitching, very soft। And again you have a floaty control over here, जिसकी outside surround is chrome, inner is piano black, you have door pulls, lock and unlock in chrome। इस गाड़ी के जो सीट कंट्रोल्स हैं, अगेन रियर पे भी दे आर हैप्टिक, एक्चुअली ये मूव नहीं करते, उसकी वो टैबलेट से हम उसकी सेटिंग्स देखते हैं। सो हेडरेस्ट है, तो पीछे यू कैन से वी हैव अबाउट, क्योंकि वहाँ आपके पास एडिशनल है। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं आपके पास 8 वे हैं, बट ओवर देयर यू हैव 10 वे एडजस्टमेंट्स। ऑलराइट, गाड़ी में 3 मेमोरी ऑप्शंस हैं, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स ऑफ कोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, फ्रंट पे भी ये मैंने रियलाइज़ किया था, ये देखिए ये सारा सॉफ्ट है, ये सारा सॉफ्ट है, लेकिन जब आप अपने हाथ यहाँ अंदर करते हैं, दिस इज़ ऑल स्क्रैची। मतलब ये अच्छा प्लास्टिक है, मतलब इससे अच्छा है ये, लेकिन आई विश कि यहाँ भी ज़रा लेदर वेदर हो जाता। मतलब यहाँ देखें इन्होंने डाली हुई है, दिस इज़ ऑल फिल्ट, ऑलराइट, दिस इज़ ऑल कारपेटिंग, तो यहाँ भी ज़रा वो अच्छी हो जाती कि ज़रा पॉश फीलिंग आती। लाइकवाइज आपका जो आर्म रेस्ट है बहुत ही सॉफ्ट है, एज इन द फ्रंट ग्रे स्टिच जा रही है, योर क्रोम लाइनिंग गोइंग ऑल द वे विद योर एम्बियंट लाइट स्ट्रिप। ओवर हेयर द वुड विनियर्स आपका कंटिन्यू हो रहा है, क्रोम जो मैंने आपको बताया।
दिस इज़ योर कंट्रोल पैनल, जो कि अगेन एलिवेटेड है, जो कि आपको एक फ्लोटी टच की रिजेंबलेंस दे रहा है, जैसे ये ऊपर वाला भी है। तो दीज टू आर, और ये विंडोज़ के मतलब आप देखें इनकी डैम्पनिंग, इनकी कंट्रोल लेवल्स और इनकी एक सॉफ्टनेस ऑफ हाउ यू ऑपरेट, ये ज़रा स्क्रैची है। दीज टू आर फॉर योर विंडोज़ फॉर द बैक। एक प्रेस करते हैं तो लाइक अ सिंगल प्रेस तो विंडो ऑपरेट होती है, डबल प्रेस करते हैं उसके बाद तो आपके ये ब्लाइंड्स आते हैं। दैट्स फॉर योर अपर शेड, ये वाला। एंड दिस इज़ फॉर योर रियर ब्लाइंड, जो कि मैंने इस टाइम नीचे किया हुआ है। आफ्टर दैट दिस इज योर बर्मिस्ट साउंड सिस्टम। ये अपर पार्ट जैसे मैंने कहा ब्राउन है, नीचे इज़ ब्लैक। एंड अगेन ये भी बहुत सॉफ्ट टच है। रियर ट्रैफिक अलर्ट, पैडल लाइट्स, अंदर से भी अगर आराम से यू कैन स्टोर हाफ लीटर बॉटल अंदर। इट्स ऑल लाइंड विद लेदर। ये पीछे इतना एक्सटेंड नहीं होता, यहीं ख़त्म होता है। एंड यहाँ भी आपको सारी लाइनिंग है। हैविंग क्रूम साइड सिल्स हेयर, और ये भी डबल है फ्रंट की तरह। दिस इज इल्यूमिनेटेड, और ये भी, और दिस इज ऑल सॉफ्ट पैडिंग। आप देखें मतलब यहाँ लोअर तक आ रही है। ये ज़रा स्क्रैची है, ये भी ज़रा स्क्रैची है, और ये भी आपकी सारी सॉफ्ट पैडिंग जा रही है। एंड इवन दिस पार्ट इज़ ऑल क्रोम, ये भी सारा वो है। एंड दिस इज़ ऑल लाइक top quality. Now let's move inside the rear, and I'm going to move to that side because इसमें executive आपके पास package भी है इस गाड़ी में. So this has the executive package with the executive screens also. So we're going to move to that seat, and yes, फिर मैं आपको बताता हूँ. Before moving back, we have the same setup on this side too. बस आपके पास ये एक नेटिंग आ जाती है on the central console for your passenger. And now let's move to the rear of the car. हम front पे भी आते हैं. Soft close, perfect. Moving here, just मैं सबसे पहले इसकी ज़रा ये पीछे करूँ. Now let me just get my shoes clean. AMG मैच जैसे मैंने आपको बताया इस गाड़ी में. Taking a step inside, बिस्मिल्लाह करके. Now we are inside this Mercedes S500. और सबसे पहले wow, the door is really big. और सबसे पहले I would like to open the sunshade. ठीक है जी, I would like to open this. आपका पूरा रियर सनशेड खुल जाता है. फ्रंट तो खोला हुआ है, रियर भी खोल दिया है. दिस इज कॉल्ड लग्जरी ऑन अनदर लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सीट्स, दे आर रियली ब्यूटीफुल सीट्स. आप देखें, और हेड रेस्ट कैन बी एडजस्टेड, और द क्विल्टिंग, एवरीथिंग, और परफोरेशंस, इवन द आइसोफिक्स पॉइंट्स आर हिडन अवे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आफ्टर दिस योर कुशनी हेड रेस्ट पिलोज अगेन लग्जरी इन्हांस करते हैं. और आपका ये रियर पे भी देखें, आइसोफिक्स टॉप टेथिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं. दिस इज़ ऑल सॉफ्ट टच ऑल्सो. ये भी सारा आपका रियर डेक सॉफ्ट टच है. दिस इज़ और योर लाइनिंग, वो आपका स्पीकर आ जाता है. दैट्स योर हाई माउंट ब्रेक लैम्प. और ये भी देखें सारा आपका क्रोम जा रहा है विद योर एम्बिएंट लाइटिंग के पीछे से भी एक लेवल लगे. दैट्स योर थर्ड हेड रेस्ट. जब हम इसे ऊपर करेंगे देन आई एम गोना टेल यू. ये आपका सेंट्रल पार्ट है. दिस इज़ अ पिलो अगेन. या क्वालिटी देखें कितनी ज़बरदस्त है. मतलब यहाँ दिस पिलो, आपका जो रियर में एक सॉर्ट ऑफ अ बाइफिकेशन लगे, ये ना लगे कि यहाँ एक बेसिक अनवांटेड सी चीज़ पड़ी है. दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट पैडेड. मुझे लग रहा था प्लास्टिक होगा. एंड दैट्स फॉर योर थ्रू लोडिंग. यू ओपन दिस, और ये है, और देन यू प्रेस दिस. बिल्कुल आप इसे प्रेस करते हैं तो आप ये आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हैं सारा. नाउ लेट मी जस्ट पुल दिस बैक, और मैं इसे अटैच कर देता हूँ. बिल्कुल ये बंद हो गया. इसे भी मैंने अटैच कर दिया, और इस पिलो को यहाँ रख दिया. इवन ये देखें, मतलब ये भी सारा सॉफ्टी है. तो ये बड़ी अच्छी बात है. इवन ये सीट्स में आपके पास सारी ब्लैक लाइनिंग जा रही है, स्टिचिंग जा रही है, डबल लेयरिंग सॉर्ट ऑफ है. एंड ये जो लुक मिलती है ना पीछे से, दिस इज़ लाइक द नेक्स्ट लेवल. उसके बाद हम यहाँ भी अभी मूव कर रहे हैं. सबसे पहले आप ये देखें मेरी लेग रूम कितनी ज़्यादा है. मतलब आई कैन जस्ट स्ट्रेच आउट क्रेजी. और माई आर्म रेस्ट, एवरीथिंग. और ये हेड रेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार है. दिस इज़ द पोजिशन इन विच आई एम सिटिंग, एंड इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. ठीक है. स्पेशली एक तो ये पिलोज हुए हैं, मैन, दे आर रियली परफेक्ट पिलोज. द वे आई एम सिटिंग, मतलब बिल्कुल ही कंफर्ट पोजिशन में. और how I would like to, like that's how I would like to travel in this Mercedes. The बहुत perfect, on the spot, beautiful, and that's what I love about this. मतलब ये बहुत मज़ेदार है. Especially the seats. मेरी आप headroom देखें, ample है. Shoulder space बहुत ज़बरदस्त है. Under थाई तो बहुत ही ज़बरदस्त है. Just have a look at this.
मेरी अंडर था इज़ जस्ट परफेक्ट, ऑलराइट। एंड आफ्टर दिस इस गाड़ी में रियर एंटरटेनमेंट भी है, जो मैंने पुरानी की थी उसमें नहीं है। आपके हेडरेस्ट इवन इनकी भी बैकिंग सारी सॉफ्ट है, ये सीट बैक पॉकेट सारी आपकी सॉफ्ट है, दिस ऑल्सो। एंड यू ऑल्सो हैव योर एयरप्लेन स्टाइल बैक सीट पॉकेट्स, बड़ी पॉश है, देखिए अंदर से भी बाहर से भी। इस गाड़ी में आपके लाउंज पैकेज भी है एंड एक्सटेंडेड, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पैकेज है तो एक्सटेंडेड आपके पास अंडर थाई सपोर्ट भी है। आई एम गोना गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस इन अ बिट। आपकी सारी स्टिच फ्लो कर रही है ऑल द वे, और ये भी देखिए इसमें एक कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्राउन विद योर ये वाली ग्रे स्टिच ऑल द वे जा रही है। दीज आर योर एयर वेंट्स, इनकी भी क्वालिटी क्लिकीनेस बहुत अच्छी है, आई रियली लाइक इट। देखिए ये क्रोम एंड प्लास्टिक है, लेकिन अपर पार्ट सारे इसके क्रोम है, और ये भी सारे वडी से लाइक सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी इफेक्ट है इसमें भी। और देखिए इनके भी 3 स्टेप्स हैं, इस तरह मूव नहीं होते, दैट्स हाउ यू कंट्रोल द एयर फ्लो। दिस इज़ रियली गुड। और ये सारे पियानो ब्लैक है, सिल्वर लाइनिंग, और ये भी सारा आपका क्रोम सिल्वर में, मतलब एक पॉश चल रहा है। दैट्स, इस गाड़ी में आपके 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, दिस इज़ योर कंप्लीट हैप्टिक बटन है, दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑफ, इस तरह यू टर्न इट ऑन, and that's for both your passengers, your airspeed for each, your temperature setting, and that's for your, क्योंकि इसके इवेंट्स यहाँ भी हैं तो आपके फुटवेल्स के लिए है, एंड दैट्स फॉर योर अपर बॉडी। तो अभी ऑटो पे सेट हुआ है, आपके फुटवेल्स वाला वो है, अपर आपका एयर वेंट ये है। इससे अगेन क्वालिटी, अगेन ये देखें आप, क्लिकीनेस देखें यार, सो गुड। आपके पास एक ज्वेलरी इफेक्ट है, ये क्रोम आउटलाइनिंग है, दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑफ और दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑन। आई विश यहाँ भी इस तरह के बटन हो जाते हैं, लेकिन ये इस बटन की भी एक हेफ्टी फील है। ये दिस इज क्वालिटी, ऑलराइट। मैं इसकी बात कर रहा था, ये एम्बिएंट लाइट्स हैं, सीट के इवन जो आपके हैंडल्स हैं ये भी सॉफ्ट पैडिंग है। वाओ, आई थॉट कि ये स्क्रैची होंगे, ऑलराइट। मैं आपको कह रहा था कि विद द प्रेस ऑफ दिस बटन आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सनशेड्स हैं ये आ जाती हैं, ये आपका क्वार्टर है, ये आपका मेन है, एंड विद दिस आप अपना पैसेंजर का भी कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली लाइक अ सिंगल टच, और ये वन टच है ऑफ कोर्स। एंड विद दिस आप इसे शीशा खोलें, आपकी विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, एंड यू हैव डबल ग्लेजिंग विंडोज़, आप देख सकते हैं ये डबल ग्लेज्ड है सारी, ठीक है। नॉर्मली आपकी पुरानी में नहीं आती थी, इसी जन में शुरू हुई थी, जिसकी वजह से आपकी इंसुलेशन इतनी फिट है कि बाहर रोड पे देयर नॉइजेस, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। दैट्स फॉर योर ब्लाइंड, ठीक है, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंड जो आपका, ये देखें आप, इसे हम एक बार ऊपर करते हैं, ठीक है, रियर ब्लाइंड ये आ गया। और इस तरह, और देखिए इसकी साइलेंट, कोई इसकी आवाज़ नहीं है, और इसका कवर वो लगा हुआ है कि ये इस तरह हिंडर ना करता रहे। आफ्टर दैट दैट्स फॉर योर पैनोरामिक रूफ कवर। हम यहाँ मूव करते हैं अभी। दैट्स योर ग्रैब हैंडल, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये प्लास्टिक है, आई विश ये भी सॉफ्ट टच होता है, ये भी सॉफ्ट टच नहीं दिया। दैट्स योर कोट हुक, कोट हुक है बिल्कुल, दैट्स योर कोट हुक। इस गाड़ी की इंटीरियर लाइटिंग इस बटन से आपकी जितना भी रियर कैबिन है सारी ऑन हो जाएंगी। देखिए एलईडी कितनी पॉश लगती हैं, क्रोम सराउंड एंड पियानो ब्लैक, और ये सारी ना वार्म एलईडी, और ये देखिए ऑन और ऑफ किस तरह होती हैं, बड़ी स्विफ्टली जाती हैं। और ये रीडिंग लाइट होगी जो आपके सेक्शन की होगी, सिर्फ ये और ये, इससे ये वाली ऑन होगी और कोई ऑन नहीं होगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त होती है। और इसमें आपके लेवल्स हैं, आप ये भी चला सकते हैं, फिर आप ओनली ये भी कर सकते हैं, ओनली दिस स्पेसिफिक, मतलब अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। ये कोट हुक हैंगर हेयर, अच्छा जी, यहाँ मैं जैसे कह रहा हूँ हीटेड वेंटिलेटेड सीट सारी हैं, और आपके पास यू हैव एडिशनल 8 तो है, यहाँ 10 भी है। एक तो आप अपनी विद द प्रेस ऑफ दिस बटन, ये जब रेड हो तो अपनी फ्रंट पैसेंजर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मैं सीट करूँगा तो फ्रंट पैसेंजर की सीट रहेगी, मेरी नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद विद दिस बटन इस ये जो मेरी सीट है ये अपराइट आ जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होती है। और वो जो पैसेंजर वाली सीट है वो भी नॉर्मल में आ जाएगी। बेसिकली है कि अगर आपने उसे एडजस्ट किया पैसेंजर है तो विद द प्रेस ऑफ बटन आप इस तरह करते हैं। और ये वाला जो बटन है इससे आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। विद द प्रेस ऑफ दिस बटन ये सीट अब पूरी आगे होगी, और ये देखें उसका हेड रेस्ट नीचे जा रहा है। अब इसकी जो स्क्रीन होगी उसका टिल्ट ऑटोमेटिकली, ये सीट रेज हो रही है कि मेरे पास ज़रा फुट रेस्ट में ज़्यादा सीट आगे चली गई। अच्छा, माई सीट इज़ टेकिंग सम एक्शंस नाउ, वो सीट अभी भी आगे जा रही है, अभी भी आगे जा रही है, वेटिंग। और अब मेरी सीट जो है दैट इज़ मेकिंग सम एक्शंस। एक तो नीचे मेरी अंडर था सपोर्ट, अब तो बिल्कुल कवर हो गया भाई, दिस इज़ रियली गुड। लाइकवाइज मेरी अंडर थाई सपोर्ट वाला जो पैनल है, मैं अपने जूते ज़रा साइड पे करूँ, आई डोंट वांट द कार टू गेट डर्टी,
सर हम पीछे पीछे रखते हैं, ऑलराइट, ठीक है जी। और वो मेरा फुटरेस्ट बन जाता है कि मैं इस पर पैर नहीं रखूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट डर्टी। अब देखिए ये एक्सटेंशन आ जाती है आपकी, एवरीथिंग परफेक्ट, एंड विद द प्रेस ऑफ दिस बटन दिस ऑल गोज बैक। और अच्छा, आप समझ गए मुझे, अगर आपने इसे वापस करना है यू प्रेस दिस बटन तो एवरीथिंग कम्स टू द नॉर्मल थिंग। अच्छा, और देखें इसके भी आपके पास जितने भी सराउंड हैं वो भी क्रोम के हैं, और ये भी लेदर का सारा, ये देखिए दिस इज़ ऑल लेदर। सो यस, ठीक है, अब ये सीट अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग में आ रही है, और इसके बाद मैं नहीं चाहूँगा कि मैं नॉर्मल पोजीशन में बैठाना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ऑल इन स्टेजेस। ये सीट अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है इस गाड़ी में, क्योंकि मैंने आपको बताया वी हैव रियर एंटरटेनमेंट। तो आप यहाँ से ऑन करते हैं तो आपके अपने सारे प्रीसेट्स आ जाते हैं। डिस्प्ले ऑफ, जो रियर लेफ्ट है, नहीं हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली यू कैन कंट्रोल योर स्टफ, आप अपने यहाँ सोर्स कर सकते हैं, फेवरेट FM AM है अपनी, आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप वहाँ से कर सकते हैं ना। और बाय द वे आपके पास यहाँ यू ऑल्सो हैव अ स्पेस फॉर योर टाइप सी पोर्ट्स, योर 2 HDMI, जो स्मार्ट HDMI हैं ये ज़रा स्क्रैची है जो कि होना नहीं चाहिए। और AMG मैथ्स जिसमें आपको बताया इसका जो सेंटर हम्प है वो भी ज़रा थोड़ा बड़ा है, बट वी कैन मूव हेयर, ऑलराइट। तो दैट्स योर क्लाइमेट कंट्रोल्स। आप यहाँ से फैंस भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ऑटो है, एयर डायरेक्शन है, और यहाँ से आप अपनी एयर क्वालिटी देख सकते हैं, और इसमें एयर फ्रेशनर भी लगा हुआ है तो एयर फ्रेशनर की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, आयनाइजेशन है, एंड यस आफ्टर दैट पर आप हे मर्सिडीज, हे मर्सिडीज, चुप 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 चुप, राइट, यहाँ से आप नेविगेशन देख सकते हैं, फ़ोन है, रेडियो है, ऐप्स, कंफर्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया, कंफर्ट में अपनी सीट पोजीशनिंग आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ठीक है, आपकी सीट पोजीशन चेंज हो चुकी है, मेमोरी ऑप्शंस हैं, एंड सीट क्लाइमेट कंट्रोल, सीट हीटिंग देखें, आप सीट हीटिंग के लेवल्स देख सकते हैं, सीट हीटिंग बैलेंस मतलब आपके लोअर पार्ट, अपर पार्ट और बॉटम पार्ट में कितना आना चाहिए, और सीट वेंटिलेशन का भी सेम सिचुएशन है आपकी, रीसेट कर सकते हैं, एम्बियंट लाइट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं जो गाड़ी में पूरी फ्लो करें, आपको कौन सा कलर चाहिए, मल्टी कलर चाहिए, जैसे मैंने कहा इसमें 2.0 लाइट्स हैं, तो अगर मैं मल्टी कलर करूँगा तो ये देखें आपके पास अपर पार्ट जो है ये फ़र्क हो जाएगा, और लोअर पार्ट इसका भी डिफरेंट, लेकिन अगर मैं मोनोटोन करूँ तो मोनोटोन हो जाएगा लाइक दिस, जो पिंकिश सा इफेक्ट है, ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं, इस टाइम बिल्कुल ही लाइट स्ट्रिप ख़त्म हुई है, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो आपकी ये लाइट स्ट्रिप सारी ऑन हो जाएगी, ये देख रहे हैं सारी आपकी लाइट स्ट्रिप एक्टिवेट हो गई है। फिलहाल ये ऑफ़ है तो हम इसे ऑफ़ ही रखते हैं। इस एक्सेंट्स हैं, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसमें लाइटिंग 2.0 देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ लिट अप, ठीक है। और आप लिंक जोन्स भी कर सकते हैं, लिंक जोन में देखें फिर हर जोन के लिहाज से लिंकिंग होगी। इसे हम ऑफ़ कर देते हैं, हम इसमें से कुछ भी नहीं छेड़ते जैसा है। और इफेक्ट्स में जाके ज़ाहिर बात है आप ऑपरेशनल फीडबैक, मल्टी कलर एनिमेशन, उसका मतलब ये है कि जैसे मैं टेम्परेचर सेट करूँगा तो वो फिर एम्बियंट लाइट यहाँ रन करेगी, अगर मैंने वार्म किया तो वो रेड जाएगी, अगर मैंने कूल किया तो वो ब्लू जाएगी। इसके बाद ये भी हो गया हमारा, सीट कंफर्ट हो गया। इन्फो में हमारे पास गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कंजम्पशन क्या जा रही है फ्रॉम स्टार्ट, और ये हमें बता रहा है। व्हीकल में हमारी एक्सेलरेशन, ब्रेक और कंफर्ट मीटर आज तक हमारी सस्पेंशन का बता रहा है, और आई कैन जज माई ड्राइवर्स की ड्राइविंग स्टाइल, और ये देखें मर्सिडीज़ एम्ब्लम कितना प्यारा लग रहा है। और आफ्टर दैट आपके पास इंक्लाइन है कि हम इस टाइम थोड़ा सा टिल्ट खड़े हैं, इस टाइम एक रैम्प पे खड़े हैं तो -1 हुआ है, एंड हमारी गाड़ी का स्ट्रेट वाला एंगल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल्स हैं। और इंजन में हमें इस टाइम हमारी पावर 520 हॉर्स पावर है, एंड 320 किलोवाट्स है, लाइक दिस इज़ आर टॉर्क एंड दैट्स अ पावर। और ये हमारा बूस्ट प्रेशर है, ऑयल टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, ऑल ऑफ दैट। एंड आफ्टर दैट हमारा वॉल्यूम कंट्रोल ये आ जाता है, कार वॉइस, अगेन ऑडियो प्लेबैक है नहीं आपके इसमें, ब्लूटूथ स्पीकर्स भी आते हैं, ट्रैक चेंज यहाँ से कर सकते हैं, होम बैक, और यहाँ से हम डिस्प्ले सिस्टम ऑफ कर देते हैं। हम डिस्प्ले भी ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ का मतलब ये है कि उसकी आवाज़ फिर भी आई जाएगी। यहाँ पर हेडफोन जैक है, इवन इसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े चौड़े हैं, बट ऑलराइट, एंड यू हैव अ क्रोम सराउंड ऑल द वे। तो लेट मी जस्ट ऐसे ना सिस्टम ऑफ कर देता हूँ, ऑलराइट, सिस्टम ऑफ हो गया है। आपका वुड पूरा फ्लो करे जैसे मैंने आपको बताया। एंड मूविंग एट द सेंटर ऑफ दिस, एक तो आपके पास ये टैबलेट आ जाती है, टैबलेट पे हम चलते हैं, ये आपका सेंट्रल कंसोल है, एंड ये बटन में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगेन ये ज्वेलरी टाइप है, सिल्वर है, और आप इसे प्रेस करें तो ये ऊपर आ जाता है।
वेरी गुड डैम्पनिंग, कारपेटिंग सारी है, वायरलेस चार्जर आपका लगा हुआ है। एंड आफ्टर दैट क्रोम स्ट्रिप सारी फ्लो कर रही है, ये पियानो ब्लैक है। और इस गाड़ी में आपको कप होल्डर्स नज़र नहीं आएंगे, बट विद द प्रेस ऑफ दिस बटन आप ये दबाएं तो आपको ये फ़ोन होल्डर आ जाता है, लेकिन विद द प्रेस ऑफ दिस बटन अगैन आपके कप होल्डर्स आ जाते हैं। और कप होल्डर्स आपके अगेन आर एडजस्टेबल, ठीक है, ये भी एडजस्ट हो सकता है, आपका ये पार्ट भी एडजस्ट हो सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक गुड रबराइज मटीरियल है, और आप फ़ोन रख सकते हैं। ये पियानो ब्लैक, और ये देखें कितना हिडन है, ठीक है। आपने इसे करने के लिए ये प्रेस दिस और ये आराम से हो जाएगा। क्रोम सारी लाइनिंग है। एंड इफ़ टैब पे आएँ तो टैब आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आप इजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजेक्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब टैब इजेक्ट हुआ है ना, तो आपके पास ये सब सिचुएशन है। और अगर मैं आपको इसका बैक दिखाऊँ तो आप कहेंगे व्हाट, सैमसंग ने, ठीक है टैब बहुत अच्छा है लेकिन फिनिशिंग अच्छी हो सकती थी। एसडी कार्ड ये है, वॉल्यूम रॉकर्स ये हैं आपके इसके, और पावर है। और दिस इज़ लाइक द नॉर्मल, हम इसे ना यहाँ ही रख के ऑपरेट करते हैं क्योंकि वरना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर नॉर्मल सैमसंग टैबलेट। स्लो तो है ही है, मतलब दिस इज़ ऑल स्टैंडर्ड टैबलेट। बेसिकली जितनी भी सेटिंग हमने यहाँ से की थी ना, वो हम यहाँ से भी करके कर सकते हैं। सैमसंग का टैब है, एंड्रॉयड चल रहा है। आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग, यू हैव एवरीथिंग। ये भी सारी आपकी ब्लैक लाइट, इसमें जितनी भी बैक लाइट्स हैं ना, ये सारी वाइट लाइट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा फॉर दिस टू गो इन, फिर ये, और फिर ये सीमलेसली अंदर चला जाता है। एंड इफ़ आई लिफ्ट दिस अप तो ये आपका सेंट्रल सीट बन जाती है। ये आपका जो है दिस पिलो गोज टू हेयर, आप यहाँ रखें। अब नाउ इफ़ आई मूव इन द सेंटर, आपके पास एक काफ़ी बड़ा हम्प है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव ही होती है। और ये देखें इवन अटेंशन टू डिटेल कि आपके जो बेल्ट के सराउंड्स हैं उनमें भी रेड इल्यूमिनेशन हैं, कि जब नाइट पे आप बकल करें तो आपको पता हो कि आपकी सीट बेल्ट है कहाँ। तो इफ़ आई मूव इन द सेंटर सीट, एक मैं बात कहना चाहूँगा कि मुझे व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये सेंटर सीट भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी है। एंड आफ्टर दैट मुझे टांगे, ज़ाहिर बात है मैं आई कैन नॉट पुट माई फीट है, तो आई हैव टू कीप इट टू द साइड, बट यहाँ भी काफ़ी जगह है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आफ्टर दैट इवन इन द सेंटर आई एम लाइक 5'10", तो मेरे पास अभी भी जगह है। हाँ, अभी मेरे पास एक काफ़ी अच्छी जगह है। और हाँ जी, मतलब 3 people लाइक मी ईजी, नो वरीज एट ऑल। इतनी चौड़ी गाड़ी है, सो दैट इज़ ऑल परफेक्ट, वो कोई मुझे मसला नहीं है। और यस, ये जो है ना, दिस लुक्स परफेक्ट। लाइक वाइज इन ऑर्डर टू लोअर दिस आप इसे दबाते हैं, और ये यार स्क्रैची होना नहीं चाहिए, सारा क्रोम जा रहा है लेकिन ये स्क्रैची नहीं होना चाहिए। यू जस्ट पुट दिस डाउन, यू प्रेस दिस बटन, ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। ये भी इवन सॉफ्ट टच है, तो बटन भी अच्छा दे देते हैं। और ये आपका पिलो यहाँ बड़ा स्नगली आ जाता है कि मतलब क्वालिटी ऑन क्वालिटी। टॉप टेलर पॉइंट्स मैंने बता दिए। सॉरी, हेड रेस्ट एडजस्टमेंट ये भी तो देखें सारा क्रोम है। सो द क्वालिटी ऑफ दिस एस क्लास इज़ रियली रियली टॉप लेवल। और हम इसे बंद करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, इसकी डैम्पनिंग ठीक है, यहाँ भी ज़रा क्रोम टेक्सचर है, तो गुड, सही है। नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट। अगेन मैंने आपको बताया दरवाजे बड़े ही आराम से खुलते हैं, मतलब ये जो है दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिलीज़, दिस इज़ अ मैनुअल रिलीज़, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, दिस इज़ मैनुअल। तो आपके पास यहाँ 2 स्टेजेस हैं। एंड ऑल्सो ऑन द साइड आपके पास एक सॉर्ट ऑफ मिनी बॉटल रखने के लिए भी ये जगह है, और ये भी सारी आपकी पैडेड है। लाइक दिस इज़ ऑल इन लाइक योर स्वेड और कारपेटिंग मटेरियल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट ऑफ द कार वेयर द रियल पार्टी इज़। और हम इस गाड़ी का आराम से सॉफ्ट क्लोज करते हैं, आराम से दे कम टू देयर position. Now let's move at the front of the car. We're gonna cover this all in a lot of detail. First of all, seats are very good. I really love them. In seats का level ही अपना है. And even you have airbags here, multiple airbags, about like I guess 20ish. But this is my ideal driving position. First of all, my comfort is really good. एक तो ये जितना भी आपका साइड पैडिंग है, दिस इज़ ऑल इन सॉफ्ट टच, ग्रे स्टिच जा रही है, ये भी सारी आपकी कारपेटिंग है। तो पर्सन लाइक मी, माई नीज आर एट कम्फर्ट, मेरी आनंदता सपोर्ट बहुत अच्छी है। अलॉन्ग विद दैट मेरा ये जो आर्म रेस्ट है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, और एवरीथिंग इज़ इन माई रीच कंट्रोल, लाइक एवरीथिंग, द स्क्रीन, एवरीथिंग। आई हैव वेरी डिसेंट हेड स्पेस। स्पेशली जो पिलोज़ है ना, दे आर मेकिंग ऑल द डिफरेंस, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आपका ये जो सेक्शन होता है ना एम्प्टी रहता है, तो विद दिस पिलो ये भी ना सपोर्टेड हो रहा है, और ये मुझे बहुत ही एक अच्छी फील दे रहा है। दिस शुड बी इन एवरी व्हीकल टू बी ऑनेस्ट। ये जो है ना, दिस लुक्स एंड फील्स रियली रियली गुड। ऑलराइट,
सीट्स का मैंने आपको बताया, स्टिच जारी है। दिस इज़ सॉफ्ट पैडिंग, दैट्स योर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये सारी फ्लो कर रही है। ब्लैक स्टिच ये है, ये भी सारा सॉफ्ट टच है। एंड यस, बहुत बहुत कमाल की सीट्स हैं। एंड दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस Mercedes S500। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो मैंने पहले मर्सिडीज़ की थी उसका जो स्टीयरिंग व्हील था वो था AMG वाला। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड एस क्लास स्टीयरिंग व्हील। तो हेंस वी हैव वुड फ्लोइंग ऑल द वे। ठीक है, ये इसके एग्जीक्यूटिव पैकेज में आती है और मायबैक में भी आपका इसकी वुड ही आती है। तो हेंस ये जो वुड है ये एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। ये जो आपकी आउटर वुड है और ये बहुत ही एक प्लश फील देती है। इनर इज़ ऑल योर लेदर जो कि ब्लैक ही स्टिच है। तो हेंस आपके पास एक ड्यूल सरफेस आ जाती है। यहाँ से आप ग्रिप है, दिस इज़ ऑल सॉफ्ट सॉफ्ट। इसके बाद दैट्स योर सेंट्रल मर्सिडीज एम्बलम। हॉर्न आपका ये है, एक डबल स्टिच ये जा रही है। मर्सिडीज एम्बलम क्रोम में बहुत प्यारा लग रहा है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। दिस इज़ ऑल इन पियानो ब्लैक। यहाँ सॉर्ट ऑफ ये ओपनिंग है और जितनी भी इसकी आउटलाइनिंग है ये एक सारा पियानो फ्लो कर रहा है और लाइक एक ना बड़ी ऑर्गोनॉमिक फील है। यू हैव गॉट पेडल्स टू, योर पॉजिटिव एंड योर नेगेटिव, और इनमें इंडेंटेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, क्रोम पेडल्स हैं। एंड दैट्स योर स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट। इस गाड़ी में ऑटो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। अलॉन्ग विद दैट दैट्स योर गियर लीवर। ये सारा क्रोम है, ये भी बड़ा अच्छा टच है। यू पुट इट डाउन टू ड्राइव, सेंट्रल न्यूट्रल है, पर रिवर्स, एंड दैट्स हाउ यू पार्क इट। लेकिन ये सारा स्क्रैच है, इतनी अच्छी गाड़ी है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। एंड दीज आर योर टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स। जो आपका ये है अगेन स्क्रैची है, ये बहुत अच्छा है। अब आप ये देखें कि दिस इज़ गुड। और ये जो अपर वाला है, ये जो नर्ली इफेक्ट है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये जो नर्ली इफेक्ट है दैट इज़ फॉर योर वाइपर्स। और इस गाड़ी में ऑटो वाइपर्स भी हैं, तो वो भी आप यहाँ लेके जा सकते हैं। एंड द प्रेस ऑफ दिस बटन आपके वॉशर जेट्स ऑन हो जाएंगे। अगेन अ वेरी गुड थिंग। प्लस इसमें ये देखें, इवन ये सारा आपका कवर्ड है, ये भी आपका सारा क्रोम है, ये आपकी सारी वुड जा रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन लुक ऑफ दिस डैशबोर्ड। इस गाड़ी में आपके पास लेयर्स हैं, टॉप लेयर, सेंटर लेयर एंड द बॉटम लेयर। ऑन द टॉप layer you have soft padded dashboard जो कि बिल्कुल फ्लैट है। You have your stitch going all the way, your speaker, your heads up display and airbags बहुत ज़्यादा हैं। इवन आपका जो ए पिलर है ये स्वेडेड है, वेरी गुड क्वालिटी। दैट्स योर एयर गाइडर फॉर बेसिक इक्विपमेंट है फॉर योर विंडो। एंड दैट्स योर स्क्रीन, आपकी ड्राइवर इंफोटेनमेंट है, लाइक द ड्राइवर क्लस्टर, पियानो ब्लैक, एक काफ़ी द बेजल इज़ अ बिट थिक, क्रोम आउटलाइनिंग है। डायल्स में हम थोड़ी देर में मूव करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो आपके पास अपर पार्ट है इसमें यू हैव योर एयर वेंट्स। ये जो क्रोम में है बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्वाड हैं और दे मूव इन सेट्स। तो ये दो और ये दो मूव करते हैं, ठीक है। एंड अगेन इनकी भी 3 पोजिशनिंग है, क्वालिटी बहुत सॉलिड है। एंड यस, और इफ़ यू वांना चेंज देयर इंटेंसिटी तो उसके लिए भी बटन्स हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट द क्वालिटी इज़ रियली टॉप नॉच, लाइक यस, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल, ये देख सकते हैं, सो गुड। स्टिच फ्लो कर रही है आपकी। आफ्टर दैट इस जो मैंने पहले गाड़ी की थी उसमें सारा ब्लैक था, पियानो ब्लैक था, इसमें वुड है, इट्स स्क्रैचेस लेस। ठीक है, तो ये आपकी सारी एक वुड पैनलिंग जा रही है, लुक्स लाइक यूर इन अ याट। और ये सारी फ्लो कर रही है, मतलब देख सकते हैं ये सारी और ये सारी। और इसमें मर्सिडीज़ के पहले थे हॉरिजॉन्टल, नाउ इट्स वर्टिकल। मैं पर्सनली हॉरिजॉन्टल प्रेफर करता हूँ। दैट्स योर स्टार्ट स्टॉप स्विच। स्टार्ट स्टॉप स्विचेस ऐसे होते हैं कि उन्हें काफ़ी नज़रअंदाज किया होता है। स्टार्ट स्टॉप स्विच ये है, पियानो है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, और ये आपकी सारी एक ज्वेलरी टाइप नार्डिंग इफेक्ट आ जाता है। एंड दैट्स क्रोम। और इसकी ना बड़ी अच्छी डैम्पनिंग होता है, प्रॉपर आपको सॉलिड थर्ड मिलती है। और ये जिस तरह कर्व हो रहा है, मतलब इसमें ना क्वालिटी इज़ रियली गुड। ऑलराइट, आफ्टर दैट दिस इज़ योर एयर वेंट। और ये दोनों सिंक में मूव करते हैं। आई विश कि ये अगर सेपरेट करते हैं ना तो वो बड़ी अच्छी होती। ये ब्लैक है, दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर एयर स्पीड। आपको एयर स्पीड अपने लिए कैसी चाहिए आप कर सकते हैं। यू कैन नॉट मूव देम अप एंड डाउन। ये सारा क्रोम है, ये भी लाइक गुड क्वालिटी। आपकी ई ब्रेक आ जाती है, इवन ई ब्रेक की भी क्वालिटी आप देखें, पियानो ब्लैक, क्रोम, एंड दैट्स हाउ इट डिसंगेजेस और दैट्स हाउ इट इंगेजेस। ठीक है, सॉफ्ट पैडिंग इवन यहाँ तक आपकी सारी फ्लो कर रही है, ये भी सारा सॉफ्ट पैडेड है। वाओ, स्पीकर फॉर योर वार्निंग्स वगैरह वो ये लगा। लेकिन वही मेरी बात है यार, फिर ये क्यों प्लास्टिक के, ये भी कर देते अच्छी क्वालिटी का। ये इन्होंने किया नहीं अच्छी क्वालिटी का। और इसमें जितने भी बटन ये सारे हैप्टिक हैं, जैसे ये भी हैप्टिक हैं, ये भी हैप्टिक हैं, तो ये भी आपके सारे हैप्टिक बटन इन पे हम आते हैं। मूविंग हेयर,
आपके पास एक क्रोम स्ट्रिप ऑल द वे फ्लो कर रही है टिल दैट्स योर ग्लव बॉक्स। और ग्लव बॉक्स की भी इवन ये देखें यार, इतनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। ये स्क्रैची है, ये आउटर रिंग स्क्रैची है, ये नहीं होना चाहिए। और ये इसका जो इनर हाउसिंग ये भी स्क्रैची है। देखिए इतना अच्छा मटेरियल आ रहा है। वाई दिस क्रोम आउटलाइनिंग, लॉकेबल है, एंड विद द प्रेस ऑफ अ बटन ये अनलॉक हो जाता है। एंड दैट्स योर डिस्पेंसर, जो आपका मर्सिडीज फ्रेग्रेंस डिस्पेंसर होता है। और इस टाइम इसमें वी हैव अ बैम्बू मूड का है, और इसका डिस्पेंसर की आप हाउसिंग देखें कितनी ज़बरदस्त, ठीक है। लाइट लगी हुई है, एवन एलईडी इल्यूमिनेशन, क्रोम है, और ये सारा आपका वेलवेटी टच है, ठीक है। देखें वेलवेटी टच फॉर योर पेन होल्डर, मिसलेनियस चीज़ें रखी हैं। इट्स वेरी गुड, वेरी वेल डैम्प्ड, इल्यूमिनेटेड है, और ये यार दिस लुक्स ब्यूटीफुल। आफ्टर दैट वी हैव योर वर्टिकल स्क्रीन। इसके बाद नीचे आपके पास ये अपनी हॉट कीज़ आ जाती हैं, और ये जितना भी आपका सेंट्रल कंट्रोल है ना, दिस इज़ ऑल पियानो ब्लैक। जैसे कि वो फ्लोटी डिज़ाइन है, आपकी क्रोम लाइनिंग फ्लो करी है ऑल द वे अराउंड दिस। एंड लाइक वाइज अगेन उसके ऊपर एक ये और फ्लोटिंग टच है, ये पियानो ब्लैक है, अगेन क्रोम लाइनिंग फ्लो करी है। दैट्स फॉर योर ड्राइवर मोड। आप डायनामिक में हैं तो आप इस टाइम ये इको है, आप इसे कंफर्ट में कर सकते हैं, स्पोर्ट में कर सकते हैं, स्पोर्ट प्लस में कर सकते हैं, एंड इंडिविजुअल इज़ योर प्रेफरेंस। बाय द वे इससे ग्राफिक बहुत अच्छे हैं। द ओनली इशू इज़ दैट ये जो प्रोटेक्टर लगा है ना, ये इसका कलर ये भी यहाँ से उतरा ही हुआ है, लेकिन क्योंकि लगा हुआ है तो वी कैन कीप इट दैट वे। दिस इज़ योर 360 कैमरा। इस गाड़ी के 360 कैमरा बहुत अच्छे हैं। एक शिकायत है गाड़ी ब्लैक है, ये भी ब्लैक होना चाहिए। दैट्स फॉर योर फ्रंट सेक्शन, ठीक है। दैट्स योर रियर कैमरा। ये आपकी गाड़ी की पूरी साइड, लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है। ऑटो पे गाड़ी खुद ही जज करती है क्या होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ये आपकी गाड़ी की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड बम्पर, ऑलराइट। ये आपका गाड़ी का स्टैंडर्ड बम्पर है, ये वाला जो है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये आपके स्टैंडर्ड व्हील्स वगैरह आ जाते हैं। हैज़र्ड वार्निंग स्विच जो कि अपॉन एक्टिवेटिंग ये रेड इंडिकेट होता है, ये मेरे ख्याल ज़रा ऑफ लगता है। आपको सिर्फ ट्रायंगल इल्यूमिनेट होना चाहिए इस गाड़ी में। अगेन क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, तो अपनी फिंगरप्रिंट से रिकगनाइज करके आप अपनी प्रोफाइल सेट करें। वो कह रहा है फंक्शन अनअवेलेबल क्योंकि है ही नहीं। एंड दैट्स हाउ यू क्लोज, मतलब आप इसे लाइक डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपर पार्ट होगा ये हमेशा परमानेंट आता है। इसमें बेसिकली हैव टू पोर्शंस, दिस एंड दिस, क्योंकि इसमें आपके फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल बटन नहीं है, तो आपके क्लाइमेट कंट्रोल बटन यहाँ ही फ्लो कर रहे होते हैं। दैट्स योर वॉल्यूम म्यूट, और यहाँ से अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सारा भी आपका हैप्टिक ही है, मतलब दिस कंप्लीट पैनल इज़ हैप्टिक, ये देख सकते हैं। ये सारा आपका कंप्लीट पैनल हैप्टिक है। यहाँ की बात करें तो दैट्स योर, जैसे मैंने कहा था 4 जोन है, तो दिस इज़ फॉर ड्राइवर, दैट्स फॉर पैसेंजर। यहाँ से मैं अपना टेम्परेचर एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से फ़ैन स्पीड, या रियर डिफॉगर, ऑटो है, रिसाइकुलेटिंग एयर है, क्लाइमेट मेन्यू, ऑटो एयर मैक्स फ्रंट पे है। अगर मैं क्लाइमेट अपना करूँ तो मेरे पास सिंक आ जाता है, डिफॉग आ जाता है, मतलब मेरा अपर पार्ट ऑफ माय बॉडी का ये है। ये बेसिकली सारी मेरी एयर फ्लोज हैं, ये मिड है, ये लो है, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये जो -2 है बेसिकली ये सीट वेंटिलेशन ऑन हुई है उसकी, ठीक है। तो आप वेंटिलेशन वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। सिंक है, एसी ऑफ है, एसी ऑन है। सेकंड रो सीट्स को भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैंने आपको सेटिंग बताई। और एयर क्वालिटी भी मैंने आपको बताई कि फ्रेश रिसाइकुलेटिंग एयर मोड ऑन है। आयनाइजेशन में एयर फ्रेशनर अभी देखें, अभी ये मैक्स पे चला गया है, अभी इस टाइम ऑफ है। आयनाइजेशन भी कर सकता हूँ विद ऑक्सीजन आयन, जैसे भी वी कैन कीप इट ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होम है, बैक है, ट्रैक चेंज है, और हम इसे कवर करते हैं ऑलरेडी जी। ये आपका सारा पियानो ब्लैक है। अगेन इन ऑर्डर टू ओपन दिस अप, आप इसे लाइटली पुल अवे करते हैं तो ये स्नगली चला जाता है। और ये भी सारा क्रोम है विद अ वेरी गुड क्वालिटी, और ये ऑटोमेटिकली वापस भी आ जाता है। तो आपने इसे आराम से इस तरह करना है, ये लॉक हो जाएगा। दीज आर योर 2 टाइप सी पोर्ट्स जो कि इल्यूमिनेटेड हैं, आपके 2 कप होल्डर्स विद योर क्रोम सराउंड, और ये एडजस्टेबल हैं। दैट इज़ योर वायरलेस चार्जिंग पोर्ट जो कि ही अंदर से वेंटिलेटेड है, बिल्कुल वेंटिलेटेड है। एंड एम्बियंट लाइट भी है। दैट्स फॉर मिसलेनियस स्टफ, अपनी चाबी रख सकते हैं, यू कैन पुट योर फोन एंड द प्रेस ऑफ अ बटन ये वापस आ जाता है। दिस इज़ योर सेंटर आर्म रेस्ट, जिसमें अगेन एक यू पैटर्न आपका जा रहा है कि ये बेसिकली एक क्लोज्ड, मतलब इट्स गिविंग कि यहाँ ही एंड हो जाता है। दैट्स योर बटन टू अनलॉक दिस। क्वालिटी ठीक है, क्रोम सराउंड यहाँ भी सारा रन अराउंड हो रहा है। एंड विद दिस आपका सेंट्रल आर्म रेस्ट जो है ये ओपन हो जाता है। इट्स लाइन वेरी गुड टाइप सी। इसमें ये बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का बहुत ख्याल रखा गया। और
with this the good thing is that कि अगर आप बैठे and your passenger wants to open it तो they can just do that और ये ओपन हो जाएगा and that's how we lock the car। तो हम अभी गाड़ी का लॉक कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सब कवर हो गया। इसके बाद एक इस गाड़ी में एक और भी हिडन सी स्पेस है जो आपको कभी पता भी नहीं चलेगी है, एंड दैट इज़ दिस थिंग। और आप यहाँ एक बहुत ही एक अच्छा चांस है कि आप चीज़ भूल भी जाएंगे रख के। ये ठीक है बट आई विश कि ये भी ज़रा थोड़ी बेहतर ऑर्गेनाइज होती टू पुट योर फ़ोन एंड यू कैन डेफिनेटली फॉरगेट यू पुट योर फ़ोन देयर। तो एक ये चीज़ है और ये भी सॉफ्ट टच है यू नो। सो यस इवन आपकी ये जो साइड है ये सारी जा रही है, स्टिच जा रही है, और जैसे मैंने आपको यहाँ की नेटिंग बताई है लगी हुई है, हमने ये तो सब कवर कर लिया। नाउ मूविंग एट द सेंट्रल डिस्प्ले, उससे पहले हम बटन्स की बात करते हैं। इस गाड़ी में फुल अडाप्टिव क्रूज़ है आपके पास। तो यहाँ से आप अपने होम में मूव करते हैं, ठीक है। और ये सारी आपकी बड़ी से हैप्टिक हैं। यहाँ से मूव अबाउट बैक है एंड ओवर हेयर आप यू एक्टिवेट योर क्रूज़, यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ से सेट करते हैं रिज्यूम टू प्राइस स्पीड कैंसिल, फ्रंट लेन, फ्रंट गाड़ी में कितना डिस्टेंस है, योर speed limiter, this is to move in your screen home and that's how you move about। back है voice assistance है, ये start button, volume control, call accept decline है, तो that's how you move about। अच्छा जी, हम अपने नज़र सेंट्रल डिस्प्ले में मूव करते हैं। तो इसमें अगर हम मूव करें, ये हमारी बेसिक डिस्प्ले होता है। दिस इज़ माई स्पीडोमीटर, दैट्स माई रेव काउंटर, और आप देख सकते हैं नीडल के करीब ये हाईलाइट होता है। तो जैसे ही आप रेव करते हैं तो जो जहाँ नीडल होती है वो ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट होता है। और पीछे आपके माउंटेन्स, एक बड़ा प्यारा वॉलपेपर है, दैट्स डिजिटल स्पीड लिमिटर है। आपकी रोड बेसिकली ये आपकी सेंट्रल लेन असिस्टेंस आ जाती है सारी, योर ट्रिप, योर पार्किंग इंडिकेशन, योर मोड इंडिकेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, योर पार्किंग ब्रेक टाइम, और आपकी लाइट्स ऑन है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्क्रॉल थ्रू दिस, और इसमें यह है कि आप एक्सीडेंटली से टच कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस तरह कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरा थंब वैसे ही यहाँ रेस्ट करता है। कोई हमारी सोर्स भी नहीं है, अटेंशन असिस्ट आ जाता है, कंजम्पशन है, इको डिस्प्ले है कि मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, फ्रॉम रीसेट है, फ्रॉम स्टार्ट है। और अगर मैं अपने होम पे जाऊँ तो आई हैव मल्टीपल डिस्प्लेस। मैं इसका नेविगेशन वाला एक्टिवेट कर सकता हूँ, असिस्टेंस सर्विस वाला, और क्लासिक है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में देखें मतलब इवन आपके ये पार्ट भी सारा चेंज हो जाता है इसमें। एंड इफ़ आई गो हेयर टू, आई हैव स्पोर्ट। स्पोर्ट में आपके पास फुल AMG स्टाइल, ओ माय गॉड, AMG, और ये भी आपका रेड हो जाता है, मतलब आपके पूरे थीम साथ ही चेंज होते हैं। और ये आपका अंडरस्टेटेड है, दिस लुक्स रियली नाइस। इसमें आपकी क्लॉक हो जाती है, और देखें इसमें आपका सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट है, बाकी कोई स्पीड नज़र ही नहीं आ रही, टू एम्फेसाइज के भाईजान ना यू आर इन द टॉप थिंग। तो ये कोई नहीं हो, हम इसे क्लासिक ही रखते हैं। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ तो हमारा जो हेड्स अप डिस्प्ले उसमें हम मिनिमल कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, इको सेटिंग। हमारा हेड्स अप डिस्प्ले ऑन है। सेटिंग पे जाऊँ तो मैं इसकी ब्राइटनेस जो है आई कैन टर्न इट ऑल द वे ऑन, और इसकी जो पोजीशनिंग है, लोअर इज़ फॉर योर डिस्प्लेज, अपर इज़ फॉर योर हेड्स अप डिस्प्ले। सेंटर पे मूव करें तो सेंटर पे थैंकफुली इन्होंने वो स्विvel व्हील निकाल दिया है, दिस इज टच स्क्रीन। और मैं भी इसके हक में ही हूँ कि सिंपलिस्टिक डिज़ाइन होना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें नहीं आपकी होनी चाहिए। सो हेयर वी हैव आवर एप्स। कंफर्ट में हमारे पास मर्सिडीज़ की, क्योंकि इस गाड़ी में मसाज सीट्स भी हैं, तो हम ड्राइवर का मसाज भी मैं ऑन कर सकता हूँ। सीट कनेक्टिकट्स, एम्बियन लाइट्स, जैसे मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। इस टाइम अगर मैं अपने एम्बियन लाइट्स में जाऊँ, ब्राइटनेस में जाऊँ, तो मेरी ये जो लाइट स्ट्रिप है ऑफ हुई हुई है, देखिए सारी ऑन हो जाती है लाइट स्ट्रिप। और इसमें मैं कलर्स में भी इसको मैं आई कैन ऑल्सो चेंज इट। मल्टी कलर में जाके मैं इसको मल्टी कलर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया। विद दिस ऑल्सो ये पूरा ब्लू फ्लो करता है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको मैं ना मोनो कलर ही रखता हूँ, और इसको मैं ऑल द वे नीचे कर देता हूँ। सीट्स हैं, मैं इसे अपनी बंद भी कर सकता हूँ, अपनी लंबार एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे किस तरह की लंबार चाहिए, 4 वे है, जिस तरह मर्जी मैं चाहूँ। हीट सीटेड सीट्स पोजिशनिंग आप बेसिकली अपनी हाइट डालें इसमें, तो वो आपकी प्रेफर्ड एज पर मर्सिडीज जो आपकी सीटिंग होनी चाहिए वो कर देगा। ये आपकी एम्बियन लाइट्स आ गई। एंड आफ्टर दैट कार्स में जाएँ, हमारी असिस्टेंस है ड्राइविंग में, ड्राइवर असिस्टेंस आ जाती है, कोलिजन अवॉइडेंस है, ESP है, हमारी ESP ऑन है इस टाइम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। बाय द वे इसमें हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आ जाती है। एंड वी हैव आवर एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है। तो यस इसमें वो मीडियम है एक्टिव ब्रेकिंग असिस्ट, ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है। और असिस्टेंस में हमारे असिस्टेंस असिस्ट ऑन है, मतलब इट जजेस कि मैं कब थक रहा हूँ, ड्राइवर कब थक रहा है। जो कैमरा है ओपन कैमरा कवर
जो पीछे वाला है अगर आपने वॉश करनी है मैनुअली ओपन कर सकते हैं, एक्टिवेट इन आर है। पार्किंग में जाके पार्किंग स्पेस इन कैमरा इमेज इन आर मतलब ऑटोमेटिकली रिकगनाइज करती है। सेट वार्निंग टोन्स, इसमें आप वार्निंग टोन्स कर सकते हैं कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए इनका। ऑडियो फेड आउट, जब आप गाड़ी रिवर्स करें या वार्निंग आए तो ऑडियो फेड हो। टाइमिंग ऑफ वार्निंग्स स्टैंडर्ड हो फ्रंट वाली और रियर वाली अर्ली हो, किस तरह आपको आनी चाहिए। एंड मनूवरिंग असिस्ट, ड्राइव अवे असिस्ट है, वार्निंग फॉर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, वार्निंग फॉर ट्रैफिक बिहाइंड और क्लोज रेंज ब्रेकिंग। मेरा क्लोज रेंज ब्रेकिंग भी एक्टिव होनी चाहिए लेकिन इसमें ऑन है, नॉट गोना डू। अच्छा बाय द वे स्क्रीन दोनों की रेजोल्यूशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। अलॉन्ग विद दैट इनके फ्रेम रेट भी बहुत अच्छे हैं और इवन ये देखिए इनकी एनिमेशंस टच इज़ वेरी गुड। बस वो इसका जो प्रोटेक्टर लगा ना उसकी वजह से इट लुक्स वेरी ऑफ। विंटर टायर लिमिट इसमें है, मतलब इफ़ यू नो ड्राइविंग इन विंटर्स तो आप, अच्छा बाय द वे इसकी जो बीम्स है ना, बीम जो करते हैं वो यहाँ से करते हैं। एंड अगर मैं इसको ये करूँ तो मेरी ये सारी विंडशील्ड गेट्स क्लियर। व्हीकल में हमारा विंटर टायर लिमिट आ जाता है, मैनुअल शिफ्टिंग हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है कि हमने करना है या नहीं। और ऑटोमेटिक फिलिंग स्टेशन है। आफ्टर दैट ड्राइविंग में मैंने आपको बता दिया इसका। कंफर्ट में आए तो इजी एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब जैसे मैं आता हूँ स्टीयरिंग व्हील मूव्स अप, माय सीट गोज़ बैक। आई गेस ये अभी ऑफ है बिल्कुल। और रोलर सन ब्लाइंड वो मैं कर सकता हूँ ओपन ऑल क्लोज ऑल। रियल विंडोज़ सन ब्लाइंड्स वो भी अभी ऑफ ही हैं। रूफ ब्लाइंड्स फ्रंट है, साइड रोलर ब्लाइंड्स तो मैं इन सब की ना ऑप्शन कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट जस्ट चेंजिंग एनी सेटिंग, सेटिंग में जा रहा हूँ। ऑक्यूपेंट एडजस्टमेंट, आप सीट बेल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओपन क्लोज ऑटोमेटिक लॉकिंग है, ठीक है, अनलॉकिंग है, ऑटोमेटिक मिरर फोल्ड इन है, ब्लॉक बूट, ठीक है, मतलब बूट जो है इसमें जाके और एक ब्लॉक कर सकते हैं, कोई वो खोल नहीं सकता। ओपनिंग हाइट लिमिटर, और या बूट की हाइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लो सीलिंग, आप नहीं चाहते बूट पूरा खुला तो आपकी मसला हो जाए। और डायनामिक सेलेक्ट, आस्क व्हेन स्टार्टिंग, मतलब जब आस्क करें तो आपसे करें डू यू वांट टू बी इन डायनामिक। और आप अपने जो इंडिविजुअल मोड है आप इसमें कर सकते हैं, आपको ड्राइव किस में चाहिए। कंफर्ट इको स्पोर्ट में, इसी तरह सस्पेंशन भी आप इन्हीं ऑप्शन में, स्टीयरिंग और ईपीएस भी आप इन्हीं ऑप्शन में डाल सकते हैं। लाइट्स में आ जाएँ तो हमारे पास मल्टी बीम एलईडीज़ है, डायनामिक लो बीम्स आप ऑन कर सकते हैं, आप हाई बीम भी कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। लो बीम हमारी लेफ़्ट साइड है, बट ये मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम इस टाइम गाड़ी की राइट साइड चल रहे हैं, तो आई एम गोना चेंज इट टू द राइट साइड, तो वो राइट साइड पे एडजस्ट हो जाते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लाइटिंग टुकेटर लाइटिंग है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया मेरी। आई हैव माई, बाय द वे ये हीटेड मिरर्स भी हैं, ठीक है, तो आई हैव माई वेलकम लाइट्स और मेरी पड लाइट्स इन द मिरर्स भी हैं जो कि हो जाती हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर लाइट स्विच ऑफ डिले 30 सेकंड्स है। एम्बियंट लाइटिंग मैंने आपको बता दिया, इसकी मैं एडिट सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और गो बैक कार सेटिंग्स में सिस्टम में हमारे पास वॉइस असिस्टेंस है, हे मर्सिडीज़ कहना है, ऑनलाइन रिकग्निशन है, एक्टिवेटेड है, कॉन्टैक्ट अपॉन ऑनलाइन रिकग्निशन है, प्रो एक्टिविटी, डोंट फॉरगेट योर फ़ोन, परफेक्ट। सेटिंग में जाके आप डायरेक्ट कमांड्स कर सकते हैं और ये इतनी स्मार्ट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, चेंज माई टेम्परेचर टू 20 सेल्सियस, तो वो मेरा टेम्परेचर 20 पे कर देगा। अभी तो 25 है ना, 20 कर देगा, पैसेंजर का नहीं छेड़ेगा, पैसेंजर का अगर 18 भी होगा तो वो 18 मिलेगा। डिस्प्ले एंड सेटिंग्स में डिस्प्ले ब्राइटनेस कर सकते हैं और सेंट्रल डिस्प्ले की आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट डिस्प्ले, मतलब इस डिस्प्ले को ऑफ करना हो। होम स्क्रीन ज़ीरो लेयर है और इसमें आप क्लासिक भी कर सकते हैं, इस टाइम स्टैंडर्ड वाला तो हम इसे स्टैंडर्ड रखते हैं। ग्राफिक गुडीज़ बिल्कुल हैं, ग्राफिक गुडीज़ का मतलब है ऑन सेंट्रल स्पेशल डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक ऑफ चेंज अ लिटिल टू सरप्राइज यू, ऑल राइट। हमारी यूनिट्स इन किलोमीटर्स हैं। एडिशनल स्पीडोमीटर अगर हम करें तो हमारा वो माइल्स पर आवर में आ जाता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। कीबोर्ड सेटिंग्स लाइक द स्टैंडर्ड है, इंग्लिश है। हैंड राइट रिकग्निशन, ठीक है, हमारा बेसिकली यहाँ पैड भी आ जाता है। और कंट्रोल एलिमेंट्स, एकूस्टिक फीडबैक, लाउड भी कर सकते हैं मैंने। टच एंड फील वैसे हाई भी कर सकते हैं। टच कंट्रोल्स मीडियम, इनमें से कुछ छेड़ नहीं, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दम। ऑडियो में हमारे पास ग्रीटिंग टोन आ जाती है, पार्कट्रॉनिक, ठीक है, फ़ोन है, वॉइस आउटपुट एंटरटेनमेंट सबके आप चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट एंड ब्लूटूथ में मैनेज इंटर एक्सेस है, MBUX हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, NFC है, वाईफाई ये है कि आप यू कैन एक्चुअली
मतलब पूरी गाड़ी में वाईफाई के ओनर्स मैनुअल सिस्टम इंफॉर्मेशन है हमारी गाड़ी के, सब आ जाते हैं। और लीगल में द लीगल इंफॉर्मेशन ऑफ द कार, तो वी डोंट वांट दैट एट द मोमेंट। फ़ोन है इन्फो में हमारे पास कार की इन्फॉर्मेशन जो कंजम्पशन है 7.5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स, 3 आवर्स। व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारी सस्पेंशन का क्या सिचुएशन है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, एंड दैट इज़ आर एंगल, ठीक है। और हमारा करंट मोड, एंड प्लस दिस टेल्स आर इंजन, द पावर, द टॉर्क, द बूस्ट प्रेशर, द गियर बॉक्स टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर। तो ये सब कर सकते हैं। एंड अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो ये मेरी सर शॉर्टकट कीज़ है, मैं मैनुअल शिफ्टिंग और कर सकता हूँ, व्हीकल को रेस कर सकता हूँ, इससे हमारे सीट है, लोअर हेड रेस्ट, ठीक है, पार्कट्रॉनिक और बूट लॉक भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ मूव करूँ तो मैं ऑल सेटिंग्स में जा सकता हूँ, जो कि मेरी ये वाली है, ठीक है। लीगल में हमने सब कवर कर ली सेटिंग्स। इसके बाद ये मेरी होम स्क्रीन है, और मसला ये है कि यहाँ हमारे क्योंकि मैप्स चलते नहीं हैं तो मैप्स तो नहीं होंगे, और यहाँ से आई कैन एक्चुअली शेयर कंटेंट। बेसिकली मैं अपनी दोनों स्क्रीन ऑफ भी कर सकता हूँ और दोनों स्क्रीन को अलाउ भी कर सकता हूँ कि मुझे वो कंटेंट शेयर कर दें। और ये थर्ड स्क्रीन जो मेरा टैबलेट है बेसिकली ये उन्हें शो कर रहा है, तो मैं अपना कंटेंट वहाँ शेयर भी कर सकता हूँ। डिवाइसेस बेसिकली वही जो मैं डिवाइसेस वाला कह रहा हूँ कि, और इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है, जैसे मैंने कहा, इट्स वेरी गुड। आफ्टर दैट मूविंग अप हेयर, दैट्स द कंट्रोल टू, लाइक एक तो आप इनकी ये इफेक्ट चेक करें, कितना प्यारा ये ज्वेलरी इफेक्ट है, एम्बियंट लाइट, अगेन इसमें फ्लोटी टच है। योर रियर व्यू मिरर इज़ फ्रेमलेस, बहुत प्यारा लगता है। एंड विद द स्वाइप, आपके इस बटन ही आप स्वाइप करते हैं तो आपका ये ब्लाइंड पूरा पीछे हो जाता है, ठीक है। इसने आपकी सारी लाइट्स, मतलब वेन एवर यू ओपन द डोर तो आपकी लाइट्स ऑफ या ऑन हो, इस तरह आप अपने ब्लाइंड रियर को करते हैं। फ्रंट वाला ये है, रियर का वो है। और इसी तरह अगर आप फिर से इसे करेंगे ना तो विद द प्रेस ये टिल्ट होता है, और अगर आप इसे फिर इस तरह करेंगे तो फिर ये जो पूरी सनरूफ है ये खुल जाएगी, ठीक है। तो वी डोंट वांट दिस, वी वांट दिस टू बी क्लोज। इस तरह आपकी गाड़ी की रियर लाइट्स ऑन हो जाती हैं, रियर सेक्शन की, और इस तरह आपकी फ्रंट सेक्शन की ऑन हो जाती है, जिसमें आपके दो बीनीथ योर रियर व्यू मेरे डिमिंग मिरर हैं और दो ये हैं, ठीक है। और इस तरह आपकी पूरी गाड़ी की ऑन हो जाएंगी। जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो आपकी गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है। आई एम गोना कीप इट ऑफ, जैसे ओनर ने रखा हुआ था, माइक्रोफोन इसमें आ जाता है। आफ्टर दैट you have all your sensors and everything right there, and this is my sun visor जिसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, yeah it's really good, that's a vanity mirror, और शीशे का काफ़ी अच्छा साइज है, कार्ड होल्डर है, और ये लाइट देखें कितनी पॉश लगती है, क्रोम आउटलाइनिंग, दिस ब्लैक पियानो ब्लैक सराउंड, अगेन एक फ्लोटी डिज़ाइन इसमें ना, सारा फ्लोटी डिज़ाइन, और ये कितनी आपकी जेंटली ऑन होती है, मज़ेदार। आज के माइक्रोफोन, और जिस तरह आप इसे पुल करते हैं तो ये एक्सटेंडेबल तो नहीं है, बट यू हैव अ सेकेंडरी वाइज़र टू, ये देखिए सेकेंडरी वाइज़र आपका नीचे आ जाता है, सो परफेक्ट। और ये भी देखिए, ये भी सारा क्रोम है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, तो ये कितनी अच्छी क्वालिटी करते हैं मर्सिडीज़ वालों, वाई आर यू सो लाइक, डबल स्टैंडर्ड्स देखे आपने इनके कितने। तो ये सब टक अवे हो जाता है। ये भी अगेन द डोर के जो ग्रैब हैंडल्स हैं हमारे, वो बड़े चीप है, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी है, मतलब इट्स नॉट बैड प्लास्टिक, ये वाला प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी यार अच्छे होने चाहिए। साठ साठ ऑलराइट, तो दैट्स अबाउट इट। ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कवर किया है। वंस अगेन थैंक यू टू द ओनर जिन्होंने मुझे इजाज़त दी। विद ऑल दिस स्पीकर्स एवरीथिंग इज टॉप नॉच, इवन ये सीट बेल्ट देखें आप, ठीक है, सीट बेल्ट में भी एयर बैग्स हैं, और ये भी जितना भी आपका ए पिलर है सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच, और ये आपकी illuminated है। ऑल इन ऑल इट्स जस्ट अ परफेक्ट कार एंड एन अमेजिंग कार। सो यस, दैट्स अबाउट द इंटीरियर। लेट मी टर्न ऑफ द कार। ये देखें कितना डैम्प्ड इसका है, ये देखें बंद हुआ, एंड ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक पुल है, ये इस तरह फिर मेरा मैनुअल पुल होता है लाइक दिस, और मैं इसे इस तरह करूँ तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। इवन द फ्रंट विंडशील्ड इज़ ऑल्सो टेंटेड, और इसकी भी डबल ग्लेजिंग है। एंड अगर आप ये सीट्स की देखें ये कितनी नीटली आती है, वरना नॉर्मली आपकी बेल्ट्स वो होती हैं प्रॉपर्ली, और they also have airbags in them. And taking a seat inside the passenger side of the car, मेरे पास एक काफ़ी अच्छी स्पेस है, आई सिट रियली कंफर्टेबली, और जो एक पूरा फ्लो है ना ये बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली विद दैट स्टीयरिंग व्हील एंड इवन बटन की डैम्पनिंग वगैरह। लाइकवाइज ओवर हेयर टू यू हैव टू एयर वेंट्स एडजस्टेबल हैं, और
इस तरह आप इनके एयर फ्लो एडजस्ट करते हैं, 3 लेवल आपके यहाँ बने हुए हैं। तो चलिए जी, दिस वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू on this Mercedes S500. I hope you liked the review. I absolutely loved it. Once again, thanks to the owner for allowing me to review the car. I hope you liked the video. Do watch the driving impressions of this car too, because it's going to be great. I hope you like the video. Kindly like करें, subscribe करें, share करें. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.